Namaskar, Adab, Sat Shri Akal. A very warm welcome, everyone. Good morning, afternoon, evening, wherever you are. Hope you're doing well, staying safe, staying healthy, and rooting for Sushant Singh Rajput. आज का सेशन छोटा सा just an open mic, and actually I will send you the StreamYard link. बहुत दिनों से एक yes, we'll take all these questions as well. Thank you, son. Uh, I know it is really heartbreaking to see all the pictures of Sushant. So yeah, जैसे मैं कह रहा था, ये वाला सेशन बहुत छोटा ट्राई करेंगे. I don't want to again say and then make it like a very big one. But we'll keep it short, sweet. किसी को कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी बात करनी है, किसी के लिए कुछ कहना है, कोई मैसेज देना है, more than welcome to join. This is your session, this is your StreamYard, and let's make it more productive. कुछ चीज़ें ऑब्वियसली आज मैं भी बात करूंगा क्योंकि ज़रूरी भी है बात करना. और बहुत ही एक्टिव दिन निकला हमारा, and yeah, great. I will definitely, based on how much I know and what I know, I will definitely address those questions as well, son. So uh, thank you for putting your questions, and anybody, feel free. आप में से कोई भी, let me just pin this. All right, so StreamYard is pinned. All right, so सबसे पहले तो आज बात करते हैं कि आज के दिन की बहुत एक्टिविटीज हो रही हैं. Another mole has been identified and has been exposed. बहुत बहुत महीनों से ये चल रहा था, and it was really required to expose this the biggest mole, I think, जिसने सारी abusing की और हर लिमिट्स को क्रॉस कर दिया था, and it was, I think, the need of the hour. So I'm glad it happened. I am not glad on how it happened. तो एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूं कि वरुण कपूर या ये जो प्लेटफॉर्म है, this doesn't travel on multiple boats. ये कोई इधर का उधर का इधर नहीं करता. It has been, at least, as far as I am concerned, I've been in one man army अपने हिसाब से. जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे करना है, जिसको बुलाना है, गलत है सही है, that's also my thing. And I acknowledge my mistakes every time I make one, and I acknowledge anything good that I do. So I'm really happy that this mole, this has who has been identified. मियाँ जी, और जो लोग ट्विटर पे नहीं है, जिनको नहीं पता, there was this guy by the name, इसके बहुत सारे नाम हैं, कोई इसको सचिन बोलता है, कोई सचिन महेश बोलता है, कोई अखाड़ा बोलता है, खंडा बोलता है, robot बोलता है. So basically these are all some of the movie names, movie handles, जिनको यूज करके ये अपने नाम के साथ he used to fool people. He was actually a failed, very sad, miserable movie critique अपने आप को समझता था. 2011 से he used to do, और उससे पहले भी हो मुझे नहीं पता, but as far as we were able to find, he was a very failed critique, known for his abuses, known for getting his handle suspended. और यहाँ तक कि इसने तो सुशांत की मूवी केदारनाथ के लिए भी बहुत ही वाहियात बातें करी. He was also someone who was, जैसे यहाँ की अगर यूएस की लैंग्वेज में बात करें, there are sex offenders and वैसे होते हैं. So he actually was someone who had these handles on different porn sites and whatnot, and he was really a very, very sad, sick man. And I think he will continue to abuse people online, क्योंकि वो शायद basic nature है. But that's what, it had to come out. We had to expose him. Unfortunately, again, my mistake, and I'm really sorry for that, that ऐसे लोगों को भी मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे बुला के एक उस तरह की इज्जत देने की कोशिश की जो शायद ये डिजर्व नहीं करते थे. So yes, I've made some mistakes, and this happens to be, I think, I'll say, a bigger mistake than what I did around Vibhor, or maybe the same level. But glad that some godly intervention happened. अपने आप जिसे कहते हैं ना, things fall in place. Everybody already knew about him.
already knew about, you know, all the nonsense this guy has been doing, and they were already fed up. बट वही कहते हैं ना, शायद एक मीडियम मुझे बनना होता है, और यू नो एंड बेस्ड ऑन दैट मेरी ट्रोलिंग आगे भी होनी है, तो विच इज़ फाइन। आई थिंक जो लोग पूछते हैं कि हाँ वरुण का क्या कंट्रीब्यूशन, में भी दिस इज माय कंट्रीब्यूशन एंड आई विल कंटिन्यू टू डू दैट टिल द टाइम आई कैन कीप द राइट पीपल टुगेदर, आई कैन कीप द मूवमेंट क्लीन। और जिस तरह से ये हुआ, यू नो, जिस प्लेटफॉर्म पे हुआ, जैसे हुआ, again, I have no affiliation. Again, I'm being very honest, very open about it. uh, just because there were some very serious allegations being made के you know इस बंदे को पता नहीं किसने ट्रोल कर दिया, जिसकी वजह से सुसाइडल टेंडेंसी आ गई उसमें, या whatever, जो भी उसकी इंग्लिश उसी को समझ आती होगी, बट you know he wanted to commit suicide, he wanted to go to police, he wanted to do all that. उसकी वजह से I think I really had to uh, you know, go there for a few minutes, and I went there only to address the issue that was pertaining to me. Anything else, मेरे को यार उस सेशन पे भी मैंने अपने लिए गालियां सुनी through the hosts of the channel, which is fine. You know, again, we don't have to agree to everything, and again, I don't have to go into all those details, क्योंकि मैं वहाँ ना उस प्लेटफॉर्म के लिए गया था, ना मैं उनके होस्ट के लिए गया था। मैं वहां गया था उस स्टेटमेंट के लिए जिसके लिए मुझे कहा गया कि वरुण ये बोल रहा है कि ही हैज सुसाइडल टेंडेंसीज, एंड उसको अगर कुछ हुआ तो यू नो द ब्लेम ही वांट्स टू पुट ऑन यू। सो उसी की वजह से मैं वहां गया, मेरा कोई और इंटेंशन नहीं था। आई डोंट इवन गेट इन टच विद सच पीपल, किसी के साथ भी मैं टच में नहीं हूँ, and I am so glad that it happened. I see Sunanda ji join, so I'm gonna keep it open and candid. So नमस्ते सुनंदा जी, कैसी हैं? हेलो वरुण, सुनाई पड़ता है? यस। हाँ, नमस्कार और सभी को नमस्कार। मैं इतने कहने आई हूँ आपको कि ये सचिन जो है ना, उसके बारे में आप सोचिएगा मत, क्योंकि आपके चैनल पे मैंने उसको बहुत बार देखा है एंड वी वर सो रेस्पेक्टफुल टू हिम। वो मैंने भी देखा है, बहुत लाइव पे आया गया था वो, लेकिन बाद में उसने जो किया वो भी मैंने देखा है। और आपने उसके चैनल पे भी क्यों आए थे? क्योंकि वो ब्लेम कर रहा था आपको। वो उसमें भी थी, मैं सुन रही थी, सब कुछ लाइव में थी। तो एक दिन वो दिन में भी आया था, दिन में भी कुछ बोल रहा था, वो जो अपनी लवली चौबे के बारे में, तो कैंसर के बारे में कुछ बोल रहा था। तो उस दिन मैं सडनली, वो 11 बजे का टाइम पर था हमारा, तो मैं उसके लाइव पे गई। मैं कभी जाती नहीं हूँ लाइव पे, उस दिन गई। तो मैंने उसको बोला, देखो मैं माँ के तरह से आपको ये करती हूँ, आपके माँ के जैसे आपको एडवाइस कर रहे हो, ऐसा मत करो, क्योंकि आप लोग सभी लोग फाइट कर रहे हैं सुशांत के लिए, ये सब मत किया करो। सभी को आप सबके नाम लेके गालियां देते हो, अभी वरुण को बोलते हो, क्यों? वरुण से आप पर्सनली बात करो, जो भी है वो सॉर्ट आउट कर लो, ऐसा मत करो ना ऑनलाइन पे आके नाम बदनाम मत करो सबका। उस दिन उसने वो ओके ओके बोला, फिर वो जो लाइव था ना उसने हटा दिया, बाद में रिकॉर्डिंग नहीं मिला मुझे उसका। उसके हटा दिया क्योंकि मैंने उसको एडवाइस किया, तो शायद उसको अच्छा नहीं लगा। मुझे कुछ बोला नहीं, उल्टा सीधा कुछ बोला नहीं, लेकिन ओके मैडम करके निकाल दिया। और जब वो बोलता है ना, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गया, वहां गया, यहाँ गया, ट्विटर पे लिखता है, मैं ट्विटर में पढ़ती हूँ जो लिखता है, लेकिन देखो जो करता है वो बोलता नहीं है। आखिर अनाउंसमेंट नहीं करता, मैं वो किया ये किया। अच्छा, तुम्हारे में हिम्मत है तो कर लो ना, कुछ तो करो, इतना पहचान है तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, वहाँ यहाँ सब बात करते हो, वो बात किया ये बात किया, कर लो ना, कुछ तो फाइंड आउट करो अभी क्या हो रहा है, कहाँ तक आ गए हम लोग, वो तो फाइंड आउट करो। वो भी नहीं कर रहे हैं। और रोज ये कि कल भी मैंने देखा आपके नाम पे चल रहा था, मैंने सुना नहीं है, खाली मैंने उसका वो जो हेडलाइंस देखती हूँ फिर छोड़ देती हूँ। बिगाड़ आ जाता है ना तो मैं छोड़ देती हूँ, नहीं मुझे नहीं सुनना है ऐसे लोगों को, क्योंकि उसको ये भी नहीं देना है, ज्यादा व्यूज भी नहीं देना है सुन के। बिल्कुल। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि हम देखिए, हम आपके माँ के एज के हैं, मैं अभी आशीर्वाद भी लिखी थी आपको पहले, ब्लेसिंग्स भी लिखे थे। आप जो कर रहे हैं ना, मैं तो आपसे जुड़ी हूँ, अभी नहीं, स्टार्टिंग से मैंने ये बात बहुत बार सुना है आपको, मैं स्टार्टिंग से आपसे, क्योंकि पहले यूट्यूबर जो सुशांत के लिए फाइट किया आप थे और आपके लाइन पे मैं थी, तब उस दिन से मैं सुन रही, विभोर को भी देखा मैंने, सभी को देखा, वो लॉयर को भी सुना है मैंने, जो लॉयर आपको छोड़ के गया था। सब कुछ सुना है, किसी ने आपको, पता नहीं है, मुझे ये एक हैरान होती है कि इतने लोग आप इतने अच्छे बर्ताव करते हो, फिर भी बाद में जाके आपके अगेंस्ट क्यों हो जाते हैं? ऐसा लगता है वही होता है ना, उनकी जब सच्चाई सामने आ जाती है और फिर मैं नहीं, यू नो, क्योंकि मेरे साथ, मेरे को बेवकूफ बनाना ना थोड़ी देर के लिए तो बहुत आसान है, सब लोग बेवकूफ बना देते हैं,
बट आसान है। उसके बाद फिर इनका जब समझ आ जाता है मुझे, हुँ। फिर मुझे उनके साथ रहना ही नहीं, मुझे खुद ही एफिलिएट नहीं होना उनके साथ, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैं सिर्फ एक यूट्यूब के चैनल के लिए नहीं, इसको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेता हूँ। हाँ, वो समझ में आता है ना, इसलिए तो हम लोग जुड़े हुए हैं। देखिए मैं ज़्यादा अभी आप बहुत महीनों से मैं नहीं आ सके आपका, वैसे मैं रिकॉर्डिंग सुनती रहती हूँ, क्योंकि हाँ जी, मैं वैसे स्पेशली वरुण कपूर डाल के सुनते रहती हूँ, वरुण का क्या आया है करके, दूसरे का नहीं लेकर सुनती हूँ मैं, खाली वरुण के थैंक नाम पे मैं प्रेस करती हूँ, वरुण का हाँ वीडियो आया नया तो सुन लेना है। तो ये क्या होता है पता है, आपका भी माइंड खराब हो जाता है इसमें, ये और लोग माइंड की जैसे जगह मैं कहूँगा सुनंदा जी, सबसे बड़ी जो बात है, मैं बड़ी ऑनेस्टली बोलूँगा, टाइम, जो टाइम खराब क्या होता है, मेरे पास बिल्कुल नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे मुश्किल जो चीज़ हमारे पास, वो कहते हैं ना, भगवान ने हमें दी है, जिसको वैल्यू हमें सबसे ज़्यादा, वो पैसा नहीं है, वो टाइम है। और हाँ हर पता है। मिनट इज़ सो इम्पोर्टेंट, कैसे वेस्ट हाँ किया जा सकता आप बहुत दिन से आ नहीं रहते, टेक्सास गए शायद ना, टेक्सास है। हाँ अकेले जी, लोग। हाँ जी। हाँ तो बहुत दिन से आ नहीं रहते, ये सब मैं पढ़ती हूँ सुनती हूँ, लेकिन मैं क्या बोलती हूँ, अभी इनको ध्यान मत दिया करो प्लीज, आप छोड़ दो इनको, क्योंकि राइट, इसका आदत है, इसको ना व्यूज लेने के लिए करता है। सचिन सचिन को सुनने दो, सचिन मुझे कुछ डर नहीं है, सचिन मैं तो ट्विटर पे हुई नहीं है, मैं हूँ लेकिन मैं कभी पढ़ती नहीं कुछ, इसलिए मुझे डर नहीं है, सचिन मेरे लिए गाली भी देने दो, क्योंकि सचिन ऐसे वो ना व्यूज लेने के लिए करता है, क्योंकि उसको मालूम है जब आपका नाम आता है ना, हम जैसे लोग देखते हैं, अरे क्या वरुण के बारे में क्या बोल रहा है। आजकल तो मुझे वो आइडिया मालूम पड़ा उसका, तो मैंने छोड़ दिया देखना, नहीं सुनना ही नहीं है अभी, ये वरुण के नाम से व्यूज ले रहे हैं, नहीं करना है, आप छोड़ दो अभी, चलिए, आप ना उनके बारे में बोलिए मत। आप देखो जैसा उस दिन संदीप सिंह का बिल्कुल, दिखाया बिल्कुल। आपने बताया, उसके हाँ जी, पहले रिया चक्रवर्ती का, ऐसे एक एक टॉपिक जो पहले का है उसको रिव्यू करते जाओ, दैट हुँ, इज बेटर, क्योंकि हम बिल्कुल, लोग को भी अच्छा लगता है और सभी लोगों को ये अच्छा लगेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ये आदमी को छोड़ दो आप, ये तो छोड़ गॉड दिया जैसा जी। है, उसको छोड़ दो, आज छोड़ लास्ट दीजिए। था, आई एम मैं वही डन, बोलती हूँ, उसको है ही बोलते नहीं पॉइंट। बकते रहने दीजिए, क्या करेगा वो बक के? ठीक है, करेगा बिल्कुल, क्या, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहुँचेगा क्या? पहुँचने दीजिए उसको। हाँ? ठीक है। और एक बात मैं उस दिन आपको लिखी थी कि ये जो महाराष्ट्र के जो आ गए अपना, हम लोग बहुत बात कर रहे थे ना, हम लोग हमेशा यही बोलते थे कि बीजेपी को आने दो, बीजेपी को आने दो। लाइव पे बोला करते थे बीजेपी को आने दो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी तो मेरा होप्स भी निकल गया। पता नहीं या है 24 के टाइम पे कुछ करेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैंने भी डिसाइड किया कि मैं वोट नहीं देने वाली, सच में बोलती हूँ। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ मोदी जी का, लेकिन मैंने या सोचा ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं नहीं दूंगी, क्योंकि एग्ज़ैक्ट हिंदुत्व के लिए देना है मुझे, लेकिन ये भी तो हमारे लड़का है ना, इसको भी मिलना है न्याय, क्यों नहीं मिल रहा है? सबको मिल रहा है तो इसको नहीं, क्यों यही नहीं तो मिल हमने रहा है? कहा था, आपने बिल्कुल सही लिखा था उस दिन। मैंने आपका मैसेज भी, कमेंट भी पढ़ा था, शायद हाँ मैंने जवाब आपने भी दिया आंसर था किया था उसको, कि हाँ ये, जवाब दिया था। हाँ, ये बहुत हमें उम्मीद बढ़ गई थी कि ये एक बार गवर्नमेंट चेंज हुई नहीं, और और कुछ हो ना हो, हम तो प्रे कर फिर रहे थे वरुण, एग्ज़ैक्ट गवर्नमेंट चेंज हो करके, या एग्ज़ैक्टली। तो और बट कुछ नहीं। अनफॉर्चुनेटली सारे वही कहते हैं ना, एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं, और यही वो कहना। सब कहाँ गए वरुण, वो जो लिखा करते थे राने गीने, और एक था वो अपना कंबोज, एग्ज़ैक्टली। वो सब कहाँ गए? आजकल कुछ लिखते नहीं है। बस सबको यूज़ करना था जी सुशांत का नाम, एंड दैट्स कि इट। सच में आजकल ना वही इनका सच असली चेहरा सामने आ रहा है, सबका असली चेहरा सामने आ रहा है, बीजेपी होने दो, दूसरी पार्टी होने दो, सबका असली चेहरा सामने आ रहा है। और पब्लिक सब। जानती है, पब्लिक कितने फूल नहीं है, इनको यप, लगता होगा पब्लिक सब छुप के बैठे हैं, फूल है, फूल नहीं है कोई यहाँ, सबको जी, पता लगता है। अभी मेरे जैसे लोगों को पता लगता है, जो जहाँ ज्यादा मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, फिर भी मुझे पता लगता है कि इन लोग क्या है। तो बाकी जी। लोगों को तो, आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे हो, आप लोग को तो सब पता लगेगा इसमें। हाँ? नहीं, और यही आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम जैसे कि आ जाती है कि इन्हीं चीज़ों को सामने रखो, डोंट बी बायस्ड, एक फिर टाइम ऐसा भी आ गया था, मैं भी थोड़ा-सा जैसे कहते हैं ना, कुछ लोगों के लिए बायस हो गया था, शायद ये हो गया था कि व्हाट, ये इन्फ्लुएंशियल है, ये ज़रूर हमारे लिए कुछ करेंगे। हमने उनको उतनी इम्पोर्टेंस दी, उतनी इज़्ज़त दी, बट बाद में क्या मिला वो तो हमने सबने देख ही हम्म। लिया। सबके और यू टर्न आपने दिए। एक चैनल पे भी बुलाया था, अभी उस दिन मैंने प्रियंका जी का वो देखा, किसी का शायद वो ही डाली थी ना, स्मिता पारेख के बारे में लिखी हुँ, थी। हाँ तो देखिए, अभी हम सबको बिलीव करते गए, पता नहीं हम लोगों को कौन क्या कर रहा है पीछे से, कुछ भी पता नहीं है। बिल्कुल, मैं भी उसको बहुत बिलीव करती थी, सबको बिलीव करती थी। आजकल का पता नहीं, आज वो पढ़ के ना मुझे ऐसा लग रहा है, अभी किसको बिलीव करें हम, किसके ऊपर यकीन रखें? नहीं, किसी ये इस मोमेंट में मुझे लगता है, बस अब जो भगवान पे अब रखें, और सुशांत बस जो खुद कर रहा डिवाइन है, डिवाइन जस्टिस वरुण, अभी डिवाइन डिवाइन जस्टिस। जस्टिस के लिए फाइट करना पड़ेगा हम लोग, और कुछ नहीं। एब्सोल्युटली, तो बिल्कुल। टेक केयर एंड यू ऑल द टू, बेस्ट टू थैंक यू यू सो मच, वरुण। बहुत अच्छा लगा। ओके,
आपसे हाँ, बात मैं करके। बहुत दिन थैंक के मैं उस दिन भी सोची थी, फिर आपने लाइव क्लोज़ कर दिया, तो मैं सोची जाने दो, नेक्स्ट टाइम अच्छा, पे अच्छा। जाऊँगे। ओके, श्योर। टेक केयर, बाय। थैंक बाय यू, टू टेक ऑल केयर, ऑफ यू, गॉड बाय, ब्लेस। बाय। ऑलराइट। तो यस, सुनंदा जी ऑब्वियसली बहुत देर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, और एंड दिस इज अगेन लाइक अ ब्लेसिंग, राइट? आई एम सो ग्रेटफुल। तो मैं जैसे बात कर रहा था, राइट, कि मुझे कोई 2, 3, 5, 6, 10 कश्तियों में पैर रखने की ज़रूरत भी नहीं है, आदत भी नहीं है। हालांकि मैंने ये प्लान किया था ये वाला सेशन पे करने का, बट क्योंकि वो एक ऐसा मोमेंट आया जहां पर आई वॉज लेफ्ट विद नो अदर चॉइस कि मुझे वो करना था, इसलिए मैंने करा। आई डोंट रिग्रेट। वो मीडियम क्या था, किसके साथ था, रियली डजेंट मैटर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये जो मूवमेंट को जो आई थिंक केडी जी ने बोला था, आई थिंक अभी मैं पढ़ रहा था और बहुत सही लिखा। हाँ, I don't think it's for views, it's to make a dent on the campaign, hit the ones who make an impact. So पता नहीं मेरा कितना इम्पैक्ट है नहीं है, बट इतना तो जरूर है कि गलत चीज तो मैं खुद भी नहीं सहूंगा, किसी के लिए भी नहीं सहूंगा। यस, मैं उतना अब्यूजिव नहीं हूँ, मेरे पास वो उतनी गालियां नहीं है, मैं उस तरह के वर्ड्स या लैंग्वेज नहीं यूज कर सकता। दैट्स समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। बट गलत चीज मैं फिर भी नहीं सहता। तो जो गलत हो रहा था उसको मैं बहुत देर से इग्नोर कर रहा था। वो जनवरी से चल रहा है, लास्ट ईयर से एक्चुअली चल रहा था। बट इतना गंदा अब्यूज, इतना गंदा, फॉर पीपल हु आर सिक, फॉर पीपल हु आर नॉट वेल, फॉर पीपल हु आर गलेबल। लोग मुझे नाइव और गलेबल कहते हैं, मैं फिर भी वही कहूंगा कि एटलीस्ट आई हैव थोड़ी स्ट्रेंथ है। आई हैव बीन ब्लेस्ड with a little bit of I can take trolling and abuse, but not everyone is made of the same material. Okay, I see Sonal join as well. Hello, Sonal. Welcome. Hi Varun, how are you? I am good. How are you? I'm doing good, thanks. So yeah, I wanted to say three things. One is what you spoke today, I heard really well. You maintained your class as always. You respect everyone, even though you may be getting, abused or trolled at that place, but you respect it. And you have earned so much respect from all of us. So hats off to you for always standing for the right and going in the eye of the storm to answer the questions because you have nothing to hide. You're always done the right things. You're always standing for the truth. So I really, really appreciate that. That is one thing I wanted to say. Second thing is, this guy, we right from the beginning we've been talking about all these Rajiv Masans and this and that. They were throwing blinds at Sushant. They were really dissing their movies, his movies rather, and all of these things together that came together and brought him down eventually, right? I mean, he just kept requesting everyone, "Meri movies jaake dekho." So people like these beggars, reviewers, who for 2 pennies they really put down he how dare he give this review for Sushant's movie, that Sachin said that kya faltu bakwas sadak chap Kedarnath, how dare he. So that's how he had reviewed. And people may argue that, oh, before this Sushant passed away, we were not the biggest fans. Yes, not being the biggest fan is okay. Not being a fan also is okay. Not liking something is okay. But ऐसे बिना देखे blindly just dissing movies is what has brought Sushant down. One of the reasons why he was there. So Sachin, people like Sachin are responsible for this. And then now using the same Sushant Singh Rajput and SSR hashtag to to monetize his channel and to kind of earn money and earn popularity and do still he keeps his same movie reviews, right? So he kept doing that, and so that is absolutely wrong. What is the difference between him and those KRKs and Rajiv Masans and all of them, right? So that is the second thing I wanted to say. Third, this particular guy, he's just crossed all bloody limits, all limits. Okay, he
has been after me for months. For months together, there is not a single day that goes by that he's not made a session or said something on the space or tweeted something. And मेरे पीछे पड़ा हुआ, and to you तो a lot more, but मैं अपनी बात कर रही हूँ. Uh, forget my health and forget everything. मैंने कभी ये नहीं कहा कि तेरी वजह से मुझे कैंसर हुआ, पर हाँ, मेरे जब when I was really down in my health, you were really torturing me with these sessions, and that has really affected my health, and I stand by that. You know, I'm a warrior. I'm not a victim card holder like you are, Sachin. And he kept on doing this. And last time I took his name was about 4 months ago, on when he came on Satish's space, when he had done that 11-hour space with his chomus, and you know they lied so much. But for 4 months, I had not taken his name on space, not on tweets, nothing. But not a single day went by where he's not coming after. So I'm not that weak. I had just completely stopped watching him because it's trash, complete trash. So usko completely मैंने मुझे उसको ignore because he does not deserve my response, not even my gali actually. So I had stopped, but there is a limit to everything, and I'm not weak. I will not stay quiet. If he thinks that, oh, he's won by doing this, he's gravely mistaken. Gravely mistaken that, you know, we'll just sit quiet and listen. So that's not going to happen. And lastly, I want to say one more thing. You know, with Rupar and Richa's channel, I had gone there today. Our ideologies may not match. They stand for something else. I stand for something else. They also may have abused me in the past. I have not said anything about it. That's okay. But I'm grateful to them that they stood for the right today, and they let me. They had a question for me, and they let me respectfully answer that question in the chat. So I'm grateful to them for that. Yes, we don't have to be the best friends, but I have that respect that they let, you know, they stood for the truth, and they kind of were unbiased about this. So all I wanted to say. And Varun, keep roaring. You are doing amazing. So many wonderful sessions that you are doing for Sushant and for a lot of other things. You are not just that, you're also keeping so many SSRians, you know, kind of together and focused. We don't speak about these losers every day like they do for hours and hours. One time response to banta hai, and बनता wo है. ho gaya. So Well, that's all I wanted to say, and thank you so much. And keep being perfect. yourself. You inspire all of us. Thank you so No, much. thank you, thank you. You inspire a lot, and I'm so glad. Abhi jaise Sunanda ji aayi, you are here. I see Shalini in the chat. Nipun, Mamta ji. I mean, these people, they have been here since day one. और भी बहुत सारे लोग हैं, जूडी है, आशीष है, आई मीन द रेगुलर पीपल, जिल इज हियर, जैस्मिन जी, आई मीन द लिस्ट इज लॉन्ग, ग्लोरिया जी, एवरीबॉडी. Thank you for sticking along. Not for me, not for this platform. ये platform तो एक जरिया है. This is just a way. And I think I feel blessed all the time कि इस platform के through I've met some amazing people. I'm meeting someone tomorrow as well, which will be very special for me. And I have actually physically met people. Online भी मैं इतने लोगों को मिल चुका हूँ. So I'm really glad that this platform itself has given me, और मुझे मतलब मैं हिंदी में भी बात करूँ क्योंकि कहा जा रहा है, तो मुझे ये प्लेटफॉर्म ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है. ये मेरे लिए एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये मेरे लिए एक यूट्यूब का एक ये सिल्वर बटन नहीं है, ये मेरे लिए एक ऐसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी है जो हर किसी को नहीं मिलती. एंड जिसको मिलती है, मैं हमेशा हर किसी को वही बोलता हूँ कि आई थिंक वी ऑल नीड टू बी मोर रिस्पेक्ट, कहते हैं ना, रिस्पेक्ट करो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की. बी मोर माइंडफुल अराउंड व्हाट एंड हाउ यू हैंडल थिंग्स, क्योंकि यही चीज आगे, I'll be very honest, and I have said it multiple times as well. अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, my kids watch, they sometimes, क्योंकि रिकमेंडेशन में आ जाता है, they are on YouTube and all that stuff. वहां जब वो मुझे देखते हैं, I don't want them to, किसी क्लिक किया और वहां पर देखे कि मैं गालियां दे रहा हूँ, या मैं I'm rolling up my sleeves कि तू आजा बेटा, मैं तुझे ये करूँ वो करूँ. नहीं, this is not how I've been brought up. This is how I really want my
kids to see कि you know this is how my dad sits on this stream and this is how we need to behave, this is how we need to respect, और सब कुछ यहाँ से मुझे नहीं पता, ये एक बहुत बड़ा you know हमें लगता है कि हमारे कोई 50 60 100 200 1000 लोग देख रहे हैं, चलो 20,000 भी देख रहे हैं. It's way beyond that because this is content that you're leaving for generations. कल को कोई भी कभी भी इसको देख सकता है and they will then pinpoint, you know, even if you're gone, your kids, your family, they will all be kind of cribbing कि यार ये क्या था, ये कैसा बाप था, क्या कर गया. So for me this is really a huge responsibility. I try my best to be very mindful, but I know I have people like you, like you know Mamta ji, Judy, Shalini, everybody, RS, Paddy. I mean, the list again goes on, and मैं हर बार नाम भूल जाता हूँ और रह जाते हैं, but you all know who you are, and thank you for sticking along. बहुत कुछ करेंगे, करना है, और सुशांत ने हम सबको इकट्ठा किया है, तो we will get justice for him before we, you know, finally relax. So thank you once again, Sonal, for your words and for support. Well, I wanted to say two quick things, if I Sure. may. Sure. So, one is, you know, a lot of people are saying that, oh, तुम्हें निकाल देंगे. किसी के father में ताकत नहीं है कि हमें निकाल दे यहाँ से. So that's one thing I wanted to say. And second thing, as you're listing, I will not even list the names. There are so many of our friends and even strangers who come, stand for the right. They are not the people who will tell me that, oh, तुमने सब सही किया. जब मैंने गलत किया तो मुझे वो लोग भी बोलते हैं कि तुमने ये गलत किया, which is what I really appreciate about my friends and those who are standing. But unfortunately, just for standing for us, these same friends and these warriors are getting maligned in spaces. They are getting bashed. They are getting trolled. But all I want to say is I want to acknowledge, and I really am very grateful for them. They all know who they are, and because मुझे किसी का नाम भूल नहीं जाना या रख नहीं देना, so I'm not saying the names, but I'm very grateful to them, and I'm very grateful to find friends who stand for the right and who have their values in place, you know, the moral values. They're not just fair weather friends where something is good, they'll stick around you. No, they are the ones who stuck around when, you know, things are worse. They suffer so much. They go to any space and they get bashed just because, you know, they are probably they've come to our space or they support us or something like that, which is so unfair to them. But they are also seeing the true colors of people who are doing this. So more power to all these friends and warriors who are supporting and standing for the right. So that's all I wanted to say. Thank you, Varun. Thank you so much. Absolutely, and I concur that. You know, it is very important to thank and acknowledge. You know, क्योंकि हमारी वजह से कितने लोग बिना मतलब के पिले हैं. मेरी तो लिस्ट ही बहुत लंबी है. You know, स्टार्टिंग यहाँ सोनल से अगर करूँ से लेके आगे तक बहुत लोग हैं. मेरी वजह से, मेरी एफिलिएशन की वजह से उनको डीएम्स में देखना पड़ा, उनको स्पेसेस में सुनना पड़ा, उनको पता नहीं कहाँ. So you know, thank you. You know who you are. Heartfelt gratitude for that. Now, couple of things quickly. Okay, I see कोई अंशुल है. अंशुल, मुझे नहीं पता आप कौन है, so I'm just gonna take you because I think maybe you want to say something. Please go ahead. Yes. Hi Varun, how are you? I am good. How are you? I'm good, sir. After a long time, I'm coming to your Haan show, and it's always really great to talk to you because you know there's so much to express, but there is no platform. So you're always giving a chance to people to express. That's very great, sir. Now Sir, I remember you. talking about what? Okay. Oh, thank you for remembering me. हाँ, Actually, you know what's been happening for the last few days is really confusing for everybody because since the movement has been started, we always been looking at some familiar faces like be it Smita Parekh or be it Priyanka Didi. And now what has happened between the two, we don't know what has happened, but it's really confusing for a lot of people because what has happened in these 2 years that we have grown emotionally attached to all these people. And listening something like this about anybody will definitely be confusing. So I don't know what has happened, but I hope things get sorted out. क्योंकि किसने क्या किया वो तो हमें पता नहीं चलता.
But I would Correct. say this one thing: this will have some bad implication on our movement, because there are a lot of people who support Smita and they will somehow drift away from the movement. I've seen their reactions, and I can't even say that it's their fault. It's just their emotions, and so yeah, definitely this will create a bit of divide and issues in the movement. I hope that's sorted out soon. करेक्ट. मैं इसको आई ट्राई टू आंसर. एक्चुअली ममता जी ने भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन सा डाला था, और एज मच एज आई नो, जितना मुझे पता है और जितना मैं इसके बारे में बात में भी कर सकता हूँ, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा अंशुल, टू यू एंड टू इवन ममता जी और टू एनीबडी हु इज हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस. हमेशा एक चीज यहाँ जो मैं अपने आप को करता हूँ, कहता हूँ ऐसे सिनारियोज में, we came here not for Priyanka Di. We did not come here for Smita. We did not come here for Varun. We did not come here for anybody else. हम आए थे यहाँ सुशांत के लिए. सुशांत को बहुत ही brutally, मारा गया. He lost his life. He was a superstar. He could have done way many things for our country, for our people. हम यहाँ पर सुशांत की उस आइडियोलॉजी को आगे लेके जाने के लिए हम बैठे हैं, उसको जस्टिस दिलाने के लिए, उसके फादर को. Now, on the same lines, the family is the only one. और मैं अपने लिए हमेशा बोलता हूँ, मैं लोगों के सामने बड़ी बार ये बोला है, आई जितना मर्जी मैं कह दूं सुशांत के लिए मैं फाइट कर रहा हूँ, जस्टिस की लड़ाई लड़ रहा हूँ, आई कैन नॉट फेस और फील द सेम पेन एज प्रियंका दी, मीतू दी, और मे बी श्वेता और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली वुड बी फेसिंग या फीलिंग. तो उनकी वो कहते हैं ना, एक राइट जो है वो एक फैमिली का हमेशा सबसे पहले होता है. Now, if the family has been cheated, or if they have been duped, or if they have been, उनको कुछ भी उनके साथ हुआ है, and if they're coming out and telling me, so it's more like if my dad or if my mom tells me that, what, मेरे किसी फ्रेंड के लिए ही चलो कह देते हैं कि वो एक गलत है. जैसे हम छोटे बच्चे जब होते हैं तब हम रेजिस्ट करते हैं, जी जी पर बाद में जब जी हम बड़े हो जाते हैं हम रियलाइज करते हैं कि यार काश मैंने ये अपने मम्मी या पापा की बात सुनी होती, शायद मुझे ये सब हाँ कुछ ना देखना पड़ता. तो यहाँ पर भी मैं वही कहूंगा, इफ प्रियंका दी इज सेइंग समथिंग, शी इज नॉट हियर टू ब्रेक द मूवमेंट, शी इज एक्चुअली हियर टू टू नो डेफिनेटली गेट नॉट डेफिनेटली नॉट राइट. तो आप जो बोल रहे हो ना, व्हाइल आई अंडरस्टैंड, बट उसकी भी अगर मैं कहूँ राइट, गलती हम जैसों की ही है. मैं अपने आप को इसलिए कहता हूँ क्योंकि हमने बहुत लोगों को यहाँ पर, तो मैंने इस प्लेटफॉर्म पे तो बहुत लोगों को ऐसे बुलाया जिनके मैंने यू टर्न देखे, जिन्होंने लिटरली यू जी टर्न जी मारे, और मैं खुद अब हक्का बक्का रह गया, यार ये बंदा ऐसा कैसे निकला. सो अगर प्रियंका दी कुछ कह रही हैं राइट, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वी रियली नीड टू स्टैंड विद द फैमिली, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, बिकॉज एंड ऑफ द डे हम अपनी मर्जी से आए थे, हमें ना प्रियंका दी ने कहा था, ना कुछ किसी फैमिली मेंबर ने कहा था, बट एट द सेम टाइम हम सुशांत के लिए आए थे, हम अपने लिए नहीं आए. तो अगर सुशांत की फैमिली कुछ कह रही है या कुछ समझा रही है, देयर हैज टू बी सम रीजन. एंड टू बी ऑनेस्ट, आपने एक और पॉइंट बोला कि स्प्लिट डिवाइड, लोग चले जाएंगे. देखो, अगर तो लोगों के पीछे आए थे, चाहे वो प्रियंका दी के पीछे आए या वो स्मिता के पीछे आए या वरुण के पीछे आए, देन वो इस मूवमेंट में कभी थे ही नहीं, बिकॉज इट वाज ऑल फॉर सुशांत. अगर आपकी आइडियोलॉजी ये कहती है कि हाँ आपका एक वो फेस जो था वो चला गया तो अब हम नहीं रहेंगे, एंड सुशांत वाज नॉट इम्पोर्टेंट, देन यू वर ऑलरेडी इन द रॉन्ग स्पॉट. तो मैं तो इसी आइडियोलॉजी से चलता हूँ. मुझे जब जैसे प्रियंका दी का वो कहते हैं ना, कोई ट्वीट आएगा या कोई मैसेज आएगा या कहीं पर वो स्पेस करेंगी या सेशन करेंगी, आई लिसन टू व्हाट शी इज सेइंग, व्हाट शी इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, और उसको फॉलो करो यार, क्योंकि एंड ऑफ द डे दे आर द वंस हु आर वर्किंग लीगली एंड इमोशनली ऑन दिस केस. सो बस इतना ही कहूंगा. इट्स टफ टू काइंड ऑफ जज, एंड यूर राइट, कई बार ऐसा होता है, जैसे अब ये प्लेटफॉर्म अगर बंद हो जाए तो लोग क्वेश्चन करेंगे, लोगों को बड़ा डिमोटिवेटेड फील होगा कि क्यों नहीं हो रहा. जैसे जब मैंने छोटी सी ब्रेक ली, लोग मुझे बहुत पिंग कर रहे थे कि क्यों नहीं हो रहे, हैव यू लेफ्ट द मूवमेंट. सो आई नो, आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, बट एट द सेम टाइम trust the family, trust the sisters. They are the ones who have faced a lot of things. They will tell us when the time is right. मुझे लगता है कि शायद कुछ ज्यादा ही हुआ होगा जिस वजह से उन्होंने ट्वीट करके भी कहा. Otherwise, I think जी. this could have been handled offline as well. Sir, So I बस इतना ही. totally understand what you're saying. Yeah, जी बिल्कुल बिल्कुल. And so I think the biggest reason for all this that people are gullible.
people are emotional, and the thing is, they don't know anything. We are sitting at our homes, all the information that we're getting is from news or YouTube. So it's quite easy for us to trust anybody. So I think Correct. it's nobody's fault, but ultimately when the truth comes up, we have to follow it. We cannot ignore it. So Exactly. absolutely right. ठीक है. Thank you, boss. बहुत अच्छा लगा बात करके, अंशुल, and keep roaring. Pleasure, You know, pleasure. every single voice matters. So don't look for leaders. Don't look for you know, just support the family and stand with them, and we'll get justice. ठीक है. Thank you, Yes, sir, boss. Thank absolutely, you so much. absolutely. Stay blessed. All right. So hopefully, Mamta ji, Thanks, thanks so आपका much. भी, you know, I was able to explain, you know, and और एक चीज और मैं भी पढ़ रहा था, वरुणी, आपने जो बोला, आप टेक्सास, अरे मोर देन वेलकम. आई थिंक यू शुड एक्चुअली, आई विल डू अ सेशन, कभी एक लाइट हार्टेड सेशन करूंगा, यू नो, फॉर पीपल हु आर प्लानिंग और हु आर ऑलवेज थिंकिंग, कॉन्टेम्पलेट करते हैं कि यू नो, इतने साल हमने एक जगह रह लिया, शुड वी मूव टू टेक्सास और नॉट. I 100% encourage everyone to take a risk. मैं रिस्क लेके आया था, मैंने सोचा था बहुत बड़ा रिस्क है, you know, moving after 11 years from one, एक ऐसा हब जहां पर आई थिंक आई वाज प्रीटी मच सेटल्ड. मुझे बहुत डर था, बट आई एम सो ग्लैड आई मेड दैट मूव, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर you know, all the pain points and all the good points of moving. So yep, definitely you should. And Gloria, absolutely you're right. आधा टाइम नहीं, बहुत टाइम वेस्ट होता है. एंड मैं तो पक चुका था, यू नो, मैं अपने घर में भी यही बात करता हूँ, कुछ फ्रेंड्स के साथ भी बात करता हूँ कि मेरे पास एटलीस्ट, अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूँ, somehow maybe I'm not that good with time management, but मेरे पास टाइम बहुत कम निकलता है. Every single day I am like short of at least 10 to 12 hours. 10-12 घंटे मुझे लगता है दिन में कम है, थोड़े और होने चाहिए थे ताकि कुछ और भी किया जा सके. बट unfortunately, you know, those fixed hours, कुछ नहीं बचता. So I'm really glad that you know, we are able to do certain things. All right, I see संयुक्ता जी एक एक करके लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. हेलो संयुक्ता, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, आपके लिए गुड इवनिंग. गुड इवनिंग, गुड नाइट. मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है. ओके. सो जो आपने एक्चुअली ओपन माइक रखा है, बट आई वांट टू टॉक अबाउट दिस इडियट सचिन. सॉरी फॉर माय लैंग्वेज. तो मैं बोल सकती हूँ? बिल्कुल जी, बोले आ जाओ. ये बंदा 5-6 महीने से सबके पीछे पड़ा हुआ है, सबको ट्रोल कर रहा है, हद से ज्यादा हम इग्नोर कर रहे, पर हर चीज की एक लिमिट होती है. थैंक गॉड कल वो लिमिट टूटी एंड यू स्पोक. आपने बहुत अच्छे से बोला. और प्लेटफॉर्म कोई भी हो, आपको उन्होंने बुलाया था, आप खुद होके नहीं गए थे. रूपल ने आपको कॉल शायद पिंग किया था, तो इसलिए आप वहाँ पे गए थे. जो भी सामने आया है वो बहुत शॉकिंग है. इस तरह से ये रिव्यूअर बन के पहले आया था, उसका नहीं चला धंधा रिव्यू का, तो ये आ गया सुशांत के मूवमेंट में अपने लोग इकट्ठा करने. एंड देन वहां से फिर उसने स्टार्ट किया कि चलो अब मैं रिव्यू, बिकॉज मैंने इसको देखा है, ये साउथ के मूवीज के हमेशा रिव्यूज करता था, इसको उनको प्रेस करता था, और उसको कोई आरटी और लाइक मिलते नहीं थे तो वो चिढ़ता था कि मेरे इसको आरटी और लाइक क्यों नहीं मिलते. एंड सेकेंड थिंग अबाउट दिस पर्सन, ही इज अ बिग टाइम मैनिपुलेटर. इतनी चीजें मैनिपुलेट की है इसने, लोगों को झूठ बोल के हमारे बारे में गलत बातें बताइए कि हमने ये कहा वो कहा, जबकि हमने ऐसा कभी कुछ किया. ये खुद हमें तीलिया मारता था कि अरे मेरे बारे में इसने ऐसा कहा, मुझे बात करनी है, इसने ऐसा कहा, इसने मुझे ये किया, उसने मुझे वो किया, और हमसे रिएक्शन निकालने की कोशिश करता था, जो उसको बहुत बार नहीं मिली रिएक्शन, क्योंकि उससे यही काम है, इससे रिएक्शन निकालो, उसको जाके बताओ, उससे रिएक्शन निकालो, इसको बताओ, और आपस में झगड़े लगवाओ. और ये एक ट्वीट से इतना रैटल हो गया कि इसको सुसाइडल थॉट्स आने लगे. और पिछले 6 महीने से क्या कर रहा है, बिना नाम लिए आपको वीगाड़ बाबा बुला रहा है. कोई लेवल है तुम्हारा? लिटरली तुम किसी को किस तरह से अब्यूज कर रहे हो, मिमिक्री कर रहे हो, हद से ज्यादा गंदी मिमिक्री कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, जितना लो लाइफ जा सकते हो उतना लो लाइफ जाके तुम बातें कर रहे हो. यार तुम्हारी दुश्मनी है तो कोई क्लास तो रखो दुश्मनी में. क्या कर रहे हो ये वीगाड़ बाबा, और पूरे स्टेशन उसके वीगाड़ बाबा पे होते. और आलतू फालतू के सवाल, ना उस सवालों का ना कोई और ना कोई छोर, बस बकवास करनी है, बैठ के व्यूज कमाने, पैसे कमाने हैं. और सबको बोलता था मोनेटाइज क्यों किया, और खुद अब मोनेटाइज करके बैठा है. ये चलता है इसको.
कोई और करे तो। और आपका सिल्वर बटन देख के तो भैया ऐसे पगला गए थे ये लोग कि पूछो मत, ऐसे पगला गया था कि जैसे कि आपने पैसे देके खरीदा है वो सिल्वर बटन। किसी से कोई लेना ना देना। और एक और बात मुझे क्लियर करनी थी, ये ना मेरा नाम लेके इसने 2 सेशन किए थे कि मैंने बोला कि ये दोनों, ये और सेंथिल दिल्ली प्रोटेस्ट में गए थे नाटक करने के लिए। तो बात हमने शुरू नहीं की थी, ये इसने शुरू किया था फोटो डाल के कि हमारा फोटो क्रॉप कर दिया वरुण ने। उसके बाद मैंने ये बोला था कि तुम नाटक करने गए थे वहां पे। तो गेट इट क्लियर, मैंने पहले शुरू नहीं किया था, शुरू इस बंदे ने किया था। इससे पहले पूछो इसने शुरू क्यों किया, फिर मैं जवाब दूंगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। एंड आई स्टैंड बाय माई स्टेटमेंट कि ये दोनों नाटक करने ही गए थे वहां पे। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों वहां पे नाटक करने गए थे। मेरा क्या जा रहा है यार, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी ना, तुम मेरे पैसे से गए थे ना, मैंने तुम्हें स्पॉन्सर किया था कि मैं एक्सपेक्ट करूँ कि तुम मेरा नाम लो वहां पे। तुम गए थे तुम्हारी मर्जी से, हमें तो पता भी नहीं था उस दिन के लाइव में तुम दिख गए, इसलिए हमें पता चला कि तुम वहां पे हो। ये मतलब लिटरली इसने एक स्पेस किया था मुझे ना, एक ये आया था ऑडियो क्लिप आई थी किसी से। व्हाट डिड ही से, ये संयुक्ता दातार करके और नाम की महिला है या औरत है, इसकी जबान बहुत चल रही है, ये इसकी लाइन थी। इस तरह की भाषा ये बोलता है स्पेसेस में। मुझे इतना गुस्सा आया था, स्वेयर कि मुझे इतना गुस्सा आया था, बट वो गणपति का टाइम था, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं इसको लेके कुछ बात करूं। तो मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। इस तरह से बात करते मेरी जबान बहुत चलती, तुम क्या कर लोगे मेरी जबान चलती है तो? तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझे 2-3 बातें क्लियर करनी। सॉरी मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, ज्यादा बड़बड़ कर दी। Not at all, not at जवाब all. देना, ये रुकने तो वाला है नहीं। Yeah. वो तो चलो कोई नहीं, कम से कम जिनको समझना है वो ऑलरेडी समझ चुके थे। बाकी लोगों को कल डेटा के साथ कि कौन क्या करने आया था इस मूवमेंट में वो भी दिखा दिया। अब अगर इसके बाद भी अगर लोगों को नहीं समझ तो यहाँ पर हम ना तो बेबी वो कहते हैं ना स्पून फीडिंग करने आए हैं, ना हम एक बच्चे को बड़ा करने आए हैं कि भाई हमें बहुत टाइम एफर्ट लगाना पड़ेगा। वीव डन आवर पार्ट, हमारी तरफ से टॉपिक खत्म है। जिसने अब जो करना है और ज्यादा गिरना है वो गिरे, जो करना है करे। बट यू ऑल्सो हैव बीन वन ऑफ दोज पीपल जिनको एक एफिलिएशन की वजह से बहुत कुछ सफर करना पड़ा। बट आई एम ग्लैड यू हैव रोड एंड यू हैव ऑलवेज स्टूड ग्राउंड, और आपने जहां जिसको जब देनी है तो दी है। तो मोर पावर टू यू एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग देयर। ऑलराइट, थैंक यू वरुण, अब आई टेक योर लीव। मैं sure, अभी thank you सेशन so सुनूंगी। much. आई Sure, टेक योर Sai. लीव, थैंक यू। Take care. Hello, hello, hello. Hi, शालिनी, आप म्यूट पे हैं। शालिनी, आप म्यूट पे हैं। आई डोंट माइंड, कैमरा भी ऑन कर लेते तो। आप फिर म्यूट पे चले गए। ओके, लुक्स लाइक कोई इशू हो रहा है। सो एनीवेज, तो जैसे मैंने कहा, वील कंटिन्यू विद आवर रेगुलर सेशंस जो हम कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव गिरिजा जी कंडक्ट दीज अमेजिंग सेशंस। उन्होंने भी एक सोशल मीडिया और एक एडिक्शन से रिलेटेड जो एक सेशन किया था। इनकरेज ऑल ऑफ यू टू काइंड ऑफ गो एंड वॉच इट अगेन। बहुत सारे साइंस, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रिकॉशंस, सब कुछ उन्होंने बात की है। And I would love, all right, she's back. Hello, Shalini. And you're still on mute. Can't hear anything. हम आपको देख पा रहे हैं, but you're mute. You are mute. Okay. Maybe disconnect and come back again, and then you can. Hello, Ayush. Okay. And now I see Chetali join. So जैसे ही उनका enable होगा, so we'll continue those sessions. We'll continue talking about this movement, how to take it to the next level, and how to continue boycotting Bollywood. बहुत सारी बकवास movies, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, and we really need to talk about those things which जो हम बहुत देर से बात करते आ रहे थे. And boycott Bollywood तो obviously is a trend that has to continue till Sushant gets justice, क्योंकि उसके बाद
वी विल डू अ क्लीन अप। और कहते हैं ना, एक मंथन का टाइम चल रहा है, ये चलेगा और फिर क्लीन अप करके एक नया बॉलीवुड खड़ा होगा। उस नए बॉलीवुड में बेसिकली वी विल हैव all these Khans and Kapoors and Kumars and Devgans, sab bahar, and we will start with a brand new slate. All right, welcome back, Shalini. And you're still mute. Okay, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है. It could be YouTube issue or it could be your phone issue. And Chetali, I don't know if you are able to connect because I see you in the backstage, but I'm not able to see your camera and audio device connected yet. All right. Okay. All right. Here she is. Hello, Chetali. Good morning. Hi Varun, good morning. Uh, okay, since it's an open mic session, I just need 3 minutes to speak. Can I go ahead? Okay, let Sure. Shalini speak first, then I can go ahead. Let her speak first. देखते हैं Shalini. Try again. नहीं, कोई तो या तो नेटवर्क का या कोई डिवाइस का इशू है. आई डोंट नो. Hi Kintu, Manuji, thank you so much. All right, Shalini, maybe again try a different device if possible. Yeah, computer या laptop से आओ. While Chetali, if you want to say something. Okay. So Varun, the thing is that संयुक्ता जी का मैं सुन रही थी. शी वाज टेलिंग सम ऑफ द पॉइंट्स. मुझे कुछ पॉइंट्स बोलना था. मैं Please. कल रात में आपका कुछ ट्वीट्स वगैरह देखा. द वे यू हैव एक्सपोज सर्टेन पॉइंट्स. Thank you for doing that. Otherwise, people were following certain people blindfoldedly. If those points were not conveyed, तो शायद लोगों को रियलिटी पता भी नहीं चलता एंड कोई भी यहाँ पे ये सब पॉइंट एक्सपोज नहीं करता. So, just like I say, people are roaming here wearing the mask of SSRN. It was a high time the fake mask need to get fall apart, and the mask has fallen apart, right? Now, ये जो YouTube channel है for that person, यहाँ पे ना कुछ लोग क्या करता है, मूवमेंट पे आने के बाद अपना मतलब एसएसआर की केस के बाद दे हैव ओपन द यूट्यूब चैनल, राइट? यूट्यूब चैनल जैसे ही लोग बनाए थे, आई डोंट नो फॉर दैट पर्सन सचिन का चैनल कितना दिन का पुराना है, आई डोंट हैव एनी क्लू ऑल्दो. बट जब आप अपना चैनल पे सुशांत का नाम यूज कर रहे हो, people are joining you session having the expectation कि आप movement के बारे पे कुछ बोलेंगे, right? That is what your listener are expecting from them. What these people are doing, they are taking the benefit of that. And session में they use the headline, what is happening around SSR movement, and they talk about shits. They talk about personal grudges. I have seen the person doing many session. उनका ऐसा टॉपिक था कि वी गार्ड बाबा is spoiling SSR movement. Let's expose वी गार्ड बाबा. This term was used. तो आपको अपना पर्सनल ग्रजेस अगर निकालना है ना, तो आप कॉमेडी सेशन कीजिए. ओके, इट इज नन ऑफ योर लुकआउट. आप कॉमेडी सेशन कीजिए, आप जो करना है कीजिए, बट प्लीज डोंट यूज SSR नेम इन दिस. This is very much annoying and very much disgusting, because somehow you are spoiling the movement, the essence of the movement. आपका उनका अगर पर्सनल ग्रजेस है या कुछ भी है, उसको इस मूवमेंट से कुछ लेना देना नहीं है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, जो वॉरियर्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, यहाँ पे किसी का हक नहीं बनता दैट एनीवन डू मॉकरी विथ दोस वॉरियर. I have seen him making mockery of you, not even one time, unlimited times. They have made mockery. They have said many bad things about you in the session. Same goes for Sonal as well. So this is not done. My point is that ये सब सर्कस तमाशा करने के लिए SSR movement का नाम को they must not use it. Okay, somehow it's spoiling the essence of the movement. आप उनको अगर सर्कस करना है, कॉमेडी करना है, वो करे अपना प्लेटफॉर्म से. प्लीज डोंट ब्रैग द नेम ऑफ SSR मूवमेंट. सेकेंड थिंग इज दैट यहाँ पे ना वरुण, वॉरियर्स की एक अलग से रेस्पेक्ट होते हैं. सुशांत का वॉरियर को लोग आइडेंटिफाई करते हैं द वे वी आर फाइट इन ट्विटर, द वे वी आर डूइंग ग्राउंड प्रोटेस्ट, ग्राउंड एक्टिविटीज.
That is the way we represent ourselves, right? We have a different kind of identity. वहां पे ही अगर कोई YouTube में बोल रहा है exposing mole in SSR movement, वहां पे he is making mockery of of certain person. He is mockery of you. What do you think? How does it even look like? क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रल्स लोग हैं जो जाते होंगे प्लेटफॉर्म में, जो सुनते होंगे, उनको शायद पॉलिटिक्स पता भी नहीं है इतना. What the impression they will be having about the movement. So this is just not done. एंड किसी को यहाँ पे हक नहीं है किसी को लेके मॉकरी करने का, दैट टू इन द फिल्दिएस्ट वे. थर्ड पॉइंट, ये जो उनका प्लेटफॉर्म है वहां पे लोगों का हेल्थ इश्यूज को लेके मजाक बनाया जाता है, right? That is just unimaginable. I think Sonal had certain health issues. उनका health issues को लेके भी they have made a fun of it. We know with a certain group of people. So this is just not acceptable at any cost. I usually don't go and speak about any other person, but since somehow it is spoiling the essence of the movement, so it's needed to speak up, right? वो लोग SSR movement के नाम पे show बनाते हैं, but eventually you are not telling a single line about positivity, about the movement. You are always discussing about others, talking about your personal rifts. You're making mockery of warriors. You are making fun of people's health issue. This should not be done. 2.5 years हो चुका है मूवमेंट का, हम लोग कुछ 6-7 महीने से नहीं है. So people need to be very very sensible. And I know वो लोग इसे बंद नहीं करेंगे, but needed to speak up. And the last point, जब one thing, that person is a complete liar. मैं सुनी हूँ उनका काफी सेशंस में बोले हैं कि someday I have spoken to him for 6 hours. मैंने जिंदगी में किसी से 6 hours तक बात नहीं किया. He was spreading some negative stuff. He was about to make some negative session and I didn't wanted to do that. क्योंकि अगर चीजें होता है कि I can handle things, so I just try to call up the people and make him understand, don't spread such kind of a negativity. That's the only reason I called him up. He told me many things over the call. I listened and end of the day I just told him don't do all the things. It was an entire conversation. इस बात को अपना सेशन पे एक बार नहीं 6 से 7 बार बोला गया. Chaitali has called me. She has spoken to me for 6 hours. So kindly don't peddle lies about me. This is just not done. And when I got abused for some certain person, खुद का एजेंडा फुलफिल करने के लिए उस अब्यूसर को ग्लोरीफाई किया गया है उसी प्लेटफॉर्म से. So this is the level they have stooped down. Last night, the way you have exposed, I mean, it was needed. What is the real color that needed to come out. And मैं genuinely बोलती नहीं हूँ, but अगर कोई मूवमेंट को बहुत ज्यादा स्पॉइल कर रहा है, मूवमेंट का जो स्पिरिट है उसको डैमेज कर रहा है, so definitely high time we needed to speak up. These are a few of the important points I always wanted to convey. Since it's the open mic session, so I have conveyed. And thank you, Varun, for letting me speak. Thank you so much, Itali. And yes, you brought up some good points as well, और ये बहुत ज़रूरी भी थे. हालांकि I avoided this for the longest time. बहुत देर से ये चल रहा था, but I think ये बहुत ज़रूरी था. And now with all this जो हुआ, let's end the topic. इसको और ज़्यादा खींचेंगे नहीं, क्योंकि हम यहाँ इन चीज़ों के लिए आए नहीं थे. इन चीज़ों के लिए हम टाइम क्यों वेस्ट और करें. तो जितना करना था वो कर लिया. It is really really shameful to see such people. वो कहते हैं ना, बेवकूफ़ बने हम लोग क्योंकि हमें नहीं पता था, पर अब अगर जानने के बाद भी बनेंगे तो it is not foolishness but it is something else. So yes, I don't know Shalini क्या चल रहा है. I think we are not able to hear you, but unfortunately I'll try to end this session now. If you want, you can call on the WhatsApp number and I can take you if you really want to speak something. Otherwise we'll definitely. Varun, can you just add one last line before you Sure. end the session?
Sure. ओके वरुण, यहाँ पे जितना यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे जितने लोग जाते हैं दे हैव अ एक्सपेक्टेशन दैट द पर्सन विल डिस्कस समथिंग अबाउट द मूवमेंट, अबाउट द कैंपेन, अबाउट द प्रोग्रेस। ओके, अभी यहाँ पे कुछ लोग शुरू से है, उनको थोड़ा सा इंसाइट्स पता है, कुछ लोग बहुत इनोसेंट है, एसएसआर वॉरियर्स है। They go, they sit, in the channel for 1 hour, 1 to 1.5 hour, having the expectation that the person maybe will, say something good about the movement, about the campaign. Okay, it is the emotion of SSRian. बट जो लोग यहाँ पे एसएसआर मूवमेंट का नाम यूज करके दे आर ग्रैबिंग द व्यूअर्स, एंड वहाँ पे instead of movement they are spreading negativity and toxicity. Not only they are using SSR, not only they are using the name of SSR movement, at the same point of time they are using emotions of innocent SSRian. So that thing just not done. I mean, people have forgotten for which cause we are here. We are here to fight for the brutal murder of Sushant Singh Rajput. उसी cause को people are using just for fulfilling their own agenda. So this thing is just not done. And since today few of the person has spoken, so I also have spoken. And rest in your case, just the way you bring good things in your platform, continue doing that. Movement पे बाकी बहुत चीजें हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं to take the movement, on a different extent. Through this platform surely we will be doing that, all the positivity, all the needful things. And that is the thing I find is a very much reliable platform to take the movement carry forward. This is the thing I wanted to say. Thank you, Varun. Thank you so much, Chitali. All right, Shalini, I don't know if you're able to hear now. I'm on the WhatsApp call. Yes, I can hear. Okay, perfect. And I think लोग भी सुन पा रहे हैं, तो बोलो आप क्या कहना चाहते थे? Okay. हाँ, कैमरा कर लेती, but I'm not feeling too well. That's okay. I saw this session and it's very, मुझे अच्छा लगा ये topic, so that's why I came. Ask me anything के साथ साथ express anything भी चल रहा है, which is good in a way. You've always done this. You've always given your platform to everybody and anybody. Your so-called haters, your fans, your supporters, anybody with a diagonally opposite view as well. So congratulations once again, Varun. You keep doing what you're doing. You've always been consistent with certain things, and people should be able to see that. If they can't see it, God bless them. I would just say that. I will not give even 1 second to trollers. You know my philosophy and my policy on that. I'm here to talk about the topic. So when you say ask me anything, I'm going to ask you something. And it could be something you may not like. It could be something which, but I know you. I know that you will be able to address these questions. So, just bear with me for 5-7 minutes. I know you have to end the session. Sure. So first of all, definitely, again, I'll say, hats off to you, Arjun, for what Varun, for what you do. Hats off that you're still standing here despite all that your family has gone through, despite all that you have gone through. And kudos to all the warriors who are still here, positively fighting for this cause. Still together, still they feel the same way they were feeling the very first day. वो आग अभी भी बरकरार है सबके सीने में. And my love to all SSR warriors. I wanted to ask you one thing. I've seen a change in you, and I've known you since the last 2 years now. I've seen a change in you. I've seen you handle these adversities, these trollers, these kind of smear campaigns against you much better now. How are you doing that? This is my first question, and I'll come to the next one later. थोड़ा sarcastic या जोक में बताता हूँ. पहले तो मैं खुद भी अभी देख रहा था, ये ऐसे ही नहीं दाढ़ी सफेद करी जैसे कहते हैं ना. But anyways, on a serious note, I think इतना कुछ हो चुका है. We all have seen it. It's just not me. I think this entire movement has shown each one of us a lot of highs and lows. We've gone through them together. मैंने तो क्या क्या नहीं अब्यूज सहा और देखा, और फिजिकल
फिजिकल थ्रेट्स भी अब तो लोग देते हैं कि भाई घर के बाहर आ जा, व्हाट नॉट, यू नो. So all these things now don't matter. The best thing is I am uh, in a country जहाँ पर at least human life को थोड़ा वैल्यू ज़्यादा दिया जाता है as compared to other countries. So मुझे इस वजह से भी थोड़ा कम डर है because I live in a very safe society. तो अगर कोई फिजिकल थ्रेट देना चाहता है तो उसके भी मैं थोड़ा एग्नोस्टिक हूँ. बट जो सोशल मीडिया है वो आई थिंक जब मैं इनिशियल शुरू हुआ था एज एन आरजे, आई थॉट दिस इज दी थिंग, बहुत बड़ी चीज लगती थी यार. 100 लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आई एम अ स्टार, आई एम अ सेलिब्रिटी. रेडियो के दिनों में दैट्स हाउ आई फेल्ट. After a while it becomes like it is very risky, it is also very एक superficial, एक fake वो है. Because the people who see you, watch you, they won't be there when you need them. तो ये लोग जब तक तुम एंटरटेन कर रहे हो, जब तक तुम कुछ एजुकेट कर रहे हो, या जब तक तुम कोई मैसेज दे रहे हो, तब तक ठीक है. But the moment you are in some trouble, most of them, I would say 90-95% of them will not be there, and you're on your own. So what you do, whatever you do, and whatever you say, end of the day, you have to be very mindful. And तभी मैं कहता हूँ I'm an open book because I really have nothing to hide यार. मतलब मैं कई बार तो मेरी बीवी भी बोल देती है कि यार थोड़ा तो कोई एक डिस्टिंक्शन रखो, एक लिमिट रखो. यू स्पीक एवरीथिंग आउट, घर की कहीं कल को और चीजें ना निकल जाए, वो मत बोला करो. बट एट द सेम टाइम बहुत हरासमेंट सहा है, बहुत कुछ सुना है, देखा है. यहाँ आए थे सुशांत के लिए, तो ऑब्वियसली वी हैड ऑल ऑफ अस हैड सम कंसेप्शन के कुछ चीजें तो होंगी एंड वी हैव टू फेस देम. इतना कुछ होगा मैंने नहीं सोचा था, बट जब कुछ चीजें ऐसी हो गई उसके बाद नाउ आई एम लाइक कूल काम. वैसे भी थोड़ी बच्चे होने के बाद पेशेंस बढ़ जाती है, तो वो भी मेरे साथ हुआ. एंड आई थिंक उनको ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जाता है. बाकी बीवी ने भी बहुत कंट्रीब्यूशन किया है पेशेंस बढ़ाने में. एंड वी ऑल नो ऑन अ लाइटर नोट आई एम सेइंग. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट मोर इम्पोर्टेंटली द पीपल, राइट? पीपल लाइक यू, पीपल लाइक सोनल, पीपल लाइक जूडी, पीपल लाइक बहुत सारे लोग हैं. देयर नाउ आउटनंबर्ड. पहले मैं होता था यार 4 5 6 हाथ में गिन लेता था. देयर आर पीपल, जैसे आज सुनंदा जी आई, वी डोंट टॉक, वी रियली डोंट इवन टॉक. ये जो कहा जाता है कि हमारी ग्रुप्स में बातें होती हैं, इट वंस इन अ वाइल वी चैट ऑन व्हाट्सएप, बट वी नो कौन कहाँ कितना हमारे साथ खड़ा है, कब के लिए खड़ा है, एंड दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. बस तो वो चल रहा है. Wonderful. This brings to my second question. When you started, you had a certain set of people with you. और लोग बिछड़ते गए, नए लोग जुड़ते गए. So the people around you kept changing, except for a few who've been consistently there alongside. जो तब भी थे और आज भी हैं. So all the people who fell off for various reasons, okay, some of them took to extreme measures of maligning your name and threatening you and threatening your family, and went down to a certain level. And there are certain people who went quiet, who did not retaliate in a vicious manner. But मैं आज hard questions पूछने वाली, Varun, so be prepared, okay? And you know that this is not prepared at all. This is just coming randomly. कहीं से भी आ रहा है ये. So what? डर अच्छा है. So उन लोगों के लिए what is your message to them? Because at one point in time they were close to you, they were your well wishers, और आज वो लोग नाराज हैं. Somewhere they feel wronged by you for various reasons, okay? And I'm not talking about one person. The way you're smiling, okay? So what is I'm like I said, मैं trollers की तो बातें नहीं करूँगी, उनको तो बिल्कुल तवज्जो नहीं देती. हाँ. So those people, उनके लिए what is your message today, wherever you stand? मुझे इस क्वेश्चन के साथ मुझे सिर्फ 2-3 शक्लें दिखती हैं, और उसमें से भी 1-2 लोग हैं ऐसे. एक ने तो उनमें से मैं कहूँगा रिसेंटली ऑन द सिल्वर बटन मुझे मैसेज भी किया था. सो आई रियली फेल्ट वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्लैड दैट दोज गोल्डन डेज जो थे उसमें से किसी ने किया. बट
देयर आर कपल जिनको शायद और सिर्फ इन किसी की वजह से या किसी के कुछ कहने से या किसी के कुछ गलत मैसेज से उनका दिमाग शायद घूमा, या दे हैड अ रॉन्ग और मे बी ये हैड अ मिसकंसेप्शन अबाउट मी. आई डोंट हैव एनी हार्ड फीलिंग्स. तो मेरा तो यही मैसेज है, मैं वहीं का वहीं हूँ जैसा पहले था. इट्स जस्ट दैट उस टाइम पे चैनल पे आई थिंक कोई 20-25 हज़ार थे लोग एज सब्सक्राइबर्स, अब 1 लाख, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो आई एम द सेम ओल्ड वरुण, उसी तरह से वही सब गलतियां करता जा रहा हूँ, वही सब चीज़ें सेशंस करता जा रहा हूँ, उसी तरह से लोगों को और लाता जा रहा हूँ, बातें करता रहा हूँ. तो अगर इनमें से कोई भी इफ दे फील दे वांट टू टॉक, मेरा नंबर भी वही है, मेरा तो सब कुछ सेम है. आई हैव नॉट चेंज्ड अ बिट. यस, आई हैव बिकम अ लिटिल, दाढ़ी सफेद हो गई है थोड़ा और वो हो गया, बट मोर इम्पोर्टेंटली my nature has not changed. So if they still feel they want to talk, they feel they are still part of the movement and they want to continue. अरे जहाँ दुश्मनों को, और you mentioned it in the initial part के totally diagonally opposite जिनके thought process है, उनको अगर opportunity मिली है, तो ये तो अपने ही लोग हैं यार, अपनी मूवमेंट के लिए. सो there is, I'm not stopping anyone, और मैं होता भी कौन हूँ यार किसी को रोकने वाला. सो फील फ्री, ये प्लेटफॉर्म सबका है, यूज इट. Simple. Very nice. I'll make it quick, but ye do questions, have been have been burning questions. Okay, so one of them is that, और कुछ लोगों की शिकायत थी और है भी शायद शिकायत, और in a way they feel that you have monetized this whole movement. You have whatever you're doing for SSR is not for SSR. ये इल्जाम है आपके ऊपर, okay? And you have been making money out of it. इसलिए वो they are upset about, upset with you. So एक इल्जाम ये है. दूसरा ये that वरुण बदल गया है, जैसा पहले था अब वैसा नहीं है. So how do you want to answer these two questions? Okay. पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये जो मोनेटाइज वाला इतना बड़ा इशू ये है क्या. कोई भी मूवमेंट, मैं कुछ एनजीओस की चलो बात करता हूँ जैसे, या मैं कोई ऐसे ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बच्चों के लिए या बड़ों के लिए या किसी के लिए करते हैं. देयर ऑल्सो नॉट नॉन प्रॉफिट कह के भी देर आर फिक्स्ड सैलरीज, देर आर फिक्स्ड स्टफ फॉर पीपल. यहाँ पर इस चैनल पे आई एम नॉट मेकिंग मनी. पहले तो ये मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ, एक जो मिसकंसेप्शन है कि यूट्यूबर होके 20-25 हज़ार के व्यूज लेके, इफ यू थिंक पीपल आर मेकिंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स, सैडली इतना बिल्कुल भी नहीं है. और मैंने पहले भी बोला है, आगे भी यही होगा. अगर मैं इतने पे रहा, देन आई विल एटलीस्ट, अगर मैं अभी 1 महीने की गैस का पैसा निकालता हूँ तो आई थिंक मे बी वो 2 गाड़ियों का गैस का हो जाएगा. सो इट इज नॉट अ लॉट ऑफ मनी. The reason why this is also monetized is, and again, there are non-monetized channels as well, but those non-monetized channels don't get into that algorithm. YouTube को कोई फायदा होना चाहिए, Google को कोई फायदा होना चाहिए to promote content. They will not do जो freebies हैं, जो free का content है उसको promote करने के लिए. If it is relevant, yes they will, but they also need to get something out of it. So the only way of YouTube to provide ये जो हमारे sessions होते हैं as suggest, जो आते हैं ना suggestions आते हैं, कई बार लोग कहते हैं यार मैं तो कुछ और देख रहा था, तुम्हारा चैनल कहाँ से बीच में आ गया, क्योंकि this is how YouTube का algorithm works. And YouTube का algorithm तभी work करेगा if they have any kind of mechanism to give them some kind of benefit या profit. Otherwise, running these systems for freebies, they will not, क्योंकि उनका इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो रहा है. नाउ जहां तक रही मेरी बात, मैं क्या करता हूँ उन पैसों का, किसको कैसे कहाँ, वो मेरी प्रॉब्लम है. चाहे उससे मैं इंटरनेट का बिल पे करूँ, चाहे मैं किसी को डोनेट करूँ, चाहे मैं किसी को वैसे दे दूँ, that's my personal thing. That should not matter to anyone, because end of the day I'm not asking you for money. You are not paying me the money. आप अपनी मर्जी से एक YouTube लिंक पे आते हो, नाम सर्च करते हो या सुशांत को सर्च करते हो और उसके ऊपर ये कंटेंट आता है, तो you watch it. You are doing it at your own will.
आई एम नॉट फोर्सिंग यू, आई एम नॉट आस्किंग यू फॉर मनी, ना मैं यहाँ पर अपने चैनल को प्रमोट करता हूँ कि यू नो व्हाट, हैव यू सब्सक्राइब्ड, हैव यू लाइक्ड, हैव यू शेयर्ड, यू नो मुझे वो सब चीज़ें ना करनी शायद अच्छी लगती है, ना मैं करूँगा। तो उस वजह से भी you know, I am not here to promote a channel, and that's why I was so happy when this silver button happened, इसीलिए कि अगर बिना कुछ किए, you know, मैं YouTube के अगर आप जाके वीडियोस देखो, how to get to a certain subscriber, how to get certain this, you have to make sure, उनका एक standard format है और बहुत सारे YouTubers करते हैं, you know, and nothing wrong in it, but they will continuously push people that you have to subscribe to my channel, अपने links में डाल देंगे, subscribe to my channel, शेयर दिस, बेल आइकन को हिट करो, सारे बड़े से बड़े। मैं अभी थोड़ी देर मैं यू नो आई एम नॉट टेकिंग अ डिग एट एनीबॉडी, बट दिस वेरी ह्यूज चैनल जिसको मैं बहुत बड़ा चैनल मानता हूँ, जयपुर डायलॉग्स, अभी थोड़ी देर पहले मेरे सेशन से पहले मैंने एक देखा, एक छोटा सा क्लिप उनका आया कि वो कोई सबमिट कर रहे हैं, एंड दैट पर्टिकुलर वीडियो इटसेल्फ वाज कि आप हमें मॉनेटरी सपोर्ट करें फॉर दैट समिट। तो ऐसे को आप क्या बोलोगे यार? आई मीन ही इज one of the biggest channels, he has so many followers, उनके views like literally इतने ज़्यादा हैं, फिर भी he needs money to do some kind of summits as well, जिसके लिए वो प्रमोट कर रहे हैं। तो अरे यार, इतने सारे चैनल्स, इतने सारे लोग हैं, आप उनको जाके पूछो, मेरे बेचारे यू नो $50-60 के पीछे क्या पड़े हो, वो $50-60 कहाँ जाते पता भी नहीं चलते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड आई हैवंट इवन यू नो ट्रस्ट टू यू नो आई स्वेयर बाय गॉड, एक बार का मैंने ये सेटअप किया हुआ था मेरे बैंक का, आई डोंट इवन बॉदर, और आई हैव नेवर एक्चुअली, वंस और ट्वाइस आई हैव सीन कि हाँ कोई यूट्यूब का ऐसा है, अदरवाइज आई डोंट इवन बॉदर कि वो कितना आया, क्या आया, कहाँ गया, आई डोंट इवन, आई हैवंट सीन इट, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। सो यार, ये जिसको मोनेटाइज से प्रॉब्लम है यार, अब मैं उसका क्या कर सकता हूँ, वो यूट्यूब की प्रॉब्लम है। यूट्यूब पैसा देना चाहता है किसी चीज के लिए क्योंकि उनको प्रमोट करना है, तो करने दो यार, मैं उसका क्या करूं, सिंपल एज दैट। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सेकंड क्या था? आप बदल गए हो, आप वैसे नहीं हो जैसे पहले थे। आई डोंट नो भाई, अब उसका तो मैं क्या बोलूं, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, यू नो, मे बी सीरियस हो गया हूँ। कल भी परसों किसी ने बोला था, क्या बोला था कि मैंने तुम्हें स्क्रीन पे देखा एंड आई फील आफ्टर you've come back after your break you are a little bit more serious, I hope it's for good. Yeah, with age, with the time, I think your responsibilities increases, your you know, you get a little bit more serious. तो सिंपल सी बात है यार, थोड़ा बहुत तो सेंसिबिलिटी भगवान करे आ रही हो, दाढ़ आती है लोगों की, अकल दाढ़ आती है, मेरी अभी शायद आई है कि नहीं आई मुझे तो नहीं पता, बट शायद कुछ आ रहा हो, तो उस वजह से अगर मैं थोड़ा सा हो भी रहा हूँ तो आई थिंक इट्स पीपल शुड बी हैप्पी। नहीं तो पहले मैं किस तरह का नाइव गलेबल होता था, हर कोई सुना के चला जाता था और मैं बेचारा सुन के निकल चुप करके बैठा रहता था। अब मैंने थोड़ा देना शुरू कर दिया, तो भाई अब वो तो अच्छा होना चाहिए। आई थिंक वरुण 2.0 वाज बेटर, बट नाउ वरुण 3.0 माइट बी अ लिटिल बिट मोर सेंसिबल। सो आई डोंट नो, आई मीन इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है भाई। चेंज इज इनएविटेबल एंड आई थिंक चेंज इज ऑलवेज गुड। इतना बड़ा चेंज अभी मैं लाइफ में करके आया हूँ, एक जगह से दूसरी जगह आया हूँ, तो अपनी पर्सनालिटी में भी तो चेंज आना चाहिए ना। that keeps the life going. Actually, you know, you addressed the question correctly in the second half, because when they say you have changed, change was basically your behavior towards them mostly. So, but you've answered the question. I hope everybody's got the response that they were looking for. Jaldi khatam kar do, don't worry. One more thing was कि you have given a platform to various controversial figures as well, चाहे वो लेटेस्ट रिवील जो था वो है, या वो जो लॉयर थे वो है, या उनके आसपास के जो लोग थे, या और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब अपने अलग स्पेसेस बनाते हैं या उनके अपने अलग ग्रुप्स हैं। आपने हर किसी को प्लेटफॉर्म दिया, तो क्लैशेस ऑब्वियसली सो ना वो एक वो आइडेंटिफिकेशन हो जाते हैं ना, कैसे ये इस कैंप का, ये उस कैंप का, ये ये शिकायत भी लोगों को रही है आपसे
कि आपने इन 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 लोगों को प्लेटफॉर्म दिया था, इसलिए वी डोंट लाइक यू, और इसलिए हम आपके साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं, इसलिए वी डोंट थिंक यू स्टैंड फॉर द ट्रूथ, you stand with these people. I hope you're getting, I hope I'm able to explain, and if I'm not able to, please comments में जरूर लिख दीजिएगा, but you know what I'm talking about. Yeah. So what do you have to say to that? देखो भाई, प्लेटफॉर्म जब ये शुरू हुआ था, मतलब दिस यूट्यूब चैनल हैज बीन एक्टिव नॉट ऑन लाइव्स बट अदरवाइज एक्टिव आई थिंक सिंस 2008. और उसके बाद मैंने इसके अंदर कोई सेशन भी एक डाला था. सो दिस यूट्यूब हैज बीन हियर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. और मैंने जब से शुरू किया, सुशांत का स्पेशली, जब से सुशांत के बारे में बात की, आई थिंक वी ऑल learned a lot about Sushant and we learned a lot from Sushant. And वो I think थोड़ा part of it is basic nature also, कि मेरी nature ही शायद ऐसी है, तो मैं उसका तो कुछ नहीं कर सकता. Even before coming to this movement, there have been times when मेरी बीवी बोलती है कि तुम्हें तो कोई भी use करके निकल जाता है, तुम तो like you are only there for people, कभी अपना भी कुछ सोचो देखो. सो आई थिंक दैट्स माय बेसिक नेचर. आज मुझे बहुत गाली पड़ने वाली कल इस सेशन के बाद, बट चलो जो भी है. तो एंड ऑफ द डे व्हेन दिस लाइव थिंग स्टार्टेड, एंड जब मैं सेल्फ, वो कहते हैं ना, उस पे आ गया रियलाइजेशन पे कि यार ये जो 13-14 दिन किए वो गलत थे. अब नाउ आई नीड टू बी ऑन द राइट पाथ, बी द पर्सन आई एम. उसके अंदर तो यार मैं हमेशा से ऑफिस में भी ऐसा हूँ, घर में भी ऐसा हूँ, पर्सनल लाइफ में भी ऐसा हूँ, दैट आई लेट अदर्स टॉक. आई समहाउ फील मैं इतना ना तो नॉलेजेबल हूँ, ना मैं इतना कोई इंटेलेक्चुअल हूँ. आई एम गुड एज अ फैसिलिटेटर, बट आई एम नॉट एज मे बी टू पेलो ज्ञान ऑन पीपल. And there are people who are more like knowledgeable, more smart and more intellectual. So let them kind of speak, right? Let them give an up like this platform, उनको opportunity दो, and let them do what they want to do. And तभी जब कर्नल RDX आए, प्रीति पांडे, ममता कालेज, आरिफ अजाकिया, I mean there have been so many people. I just keep quiet as much as I can and listen to them because they are the ones who have more experience. एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम देम. तो अगर वो प्लेटफॉर्म मैं ऐसे लोगों को नहीं दूंगा, अब ऑब्वियसली किसी के लिखा नहीं है कि व्हाट ये राइट है और ये रॉन्ग है, तो दैट्स हाउ वी जनरली डू इट. लोगों की शादियों में ऐसा हो जाता है, तो वो शादी कर लेते हैं, तो उसके बाद पता लगता है यार ये बंदा या बंदी ठीक नहीं थे. तो यहाँ तो प्लेटफॉर्म पे अननोन लोग आ रहे हैं. Anybody can say anything, and tomorrow they could be, for the heck of it, they could be criminals. How do I care, or how do I, know? जब पता चल गया उसके बाद अगर हम कुछ ऐसा करें तो yes, then there is definitely something wrong. But still there are, कोर्ट में भी जैसे कहते हैं, राइट, कोई क्रिमिनल तब तक क्रिमिनल नहीं है जब तक वो प्रूव नहीं होता. तो अगर कोई चाहता है अपॉर्चुनिटी, he or she should be allowed to speak. Otherwise then what's the whole point of, like, आज ओपन माइक, राइट, मैंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके पंगा ले लिया और आज शालिनी लगी हुई है एक के बाद एक फिर को स्पॉट पे क्वेश्चन डालने. बट दैट्स द होल पॉइंट, राइट? बी कैंडिड, बी हु यू आर. यू डोंट हैव टू, लाइक, स्क्रिप्ट नहीं होती, कोई वो एजेंडा नहीं होता. तो आई हैवंट चेंज्ड. आई विल कंटिन्यू टू डू दिस. ग्रुप्स जिसने बनाने हैं वो बनाए. मैं तो हर ग्रुप का पार्ट भी हूँ और नहीं भी हूँ. जिसने मेरे को अपना ग्रुप का, मैं तो पहले भी बोला कई बार, people feel I am like their son, like their brother, like their friend. कई लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ उस तरह से बात करते हैं. तो मैं उनके लिए वैसा हूँ जिनके लिए मैं एक गैंग का लीडर हूँ, या मैं एक whatever जो भी हूँ. अगर उनको ये लगता है तो मैं वैसा हूँ यार. अब मैं हर एक का परसेप्शन, वही मैं पंजाबी के को बोलता हूँ ना कि ना मैं राजमा चावल तो हूँ नहीं भाई कि मैं सबको खुश कर सकता हूँ. तो जितने को अच्छा लगता है वो खाएं, आए, एंजॉय करें. और जिसको नहीं लगता, यार, देयर आर थाउजेंड्स, मिलियंस एक्चुअली of other people, YouTubers, YouTube channels, platforms. आप वहाँ जाओ यार. अब्यूज मत करो, लैंग्वेज पे कंट्रोल रखो, अब्यूज मत करो, गाली गलौज मत करो, एंड डोंट स्टूप टू अ लेवल जो किसी के लिए भी अनबेरेबल हो जाए. बाकी यार, लिव योर लाइफ एंड स्प्रेड शेयर जॉय. एंड वही मैं कर रहा हूँ. अब वो गैंग है तो गैंग है भाई. तो हाँ, शालिनी भी इस गैंग का पार्ट है भाई. देख लो जो इसको ट्रोल करते हैं. एक क्वेश्चन है, आई थिंक आरिस का. आप पहले उसको रिस्पॉन्ड कर लो, एंड देन आई आस्क द लास्ट क्वेश्चन. If you have been backstabbed by people you trusted the most, how will you
तो आरएस, आउट ऑफ ऑल द पीपल यू हैव सीन इट राइट, कितने लोग हैं जिन्होंने क्या कहते हैं, बैक टू बैक स्टैप किया है। उसके बाद भी हमने, अभी तो ये रिसेंट मोस्ट यही जो अभी केस चल रहा है, जो जो इशू चल रहा है, इस बंदे ने कितना ज्यादा किया था, फिर भी वी गेव हिम चांसेस, आई गेव हिम चांसेस, लेट मी जस्ट से दैट, कि चलो कोई नहीं। तो दिस इज आई थिंक ह्यूमन नेचर, दिस इज ऑब्वियसली थोड़ा सा मेरा भी है, बट एट द सेम टाइम दिस इज हाउ वी आर। हम लोग बिना ट्रस्ट किए कैसे लाइफ जिए यार, ट्रस्ट तो करना ही पड़ता है। अब अगर किसी ने एक दो बार कर लिया, नाउ after so many incidents, now I'm done. Again, maybe 10 years down the line, कभी जब हम और बुढ़े हो जाएंगे, यूट्यूब से उतर जाएंगे, चले जाएंगे कहीं और, maybe I'll sit and laugh about all the nonsense that happened and it would be like a joke. But for now, I've been like bitten a lot of times now by certain people. They can never come back. उसी के ऊपर मैं फिर भी एक चीज शेयर कर लेता हूँ। I am actually in touch or speaking to someone right now who definitely did say a lot of things around against me as well, but then there is always a scope of change, a scope of improvement. So halaki I'm just being quiet about it. I want to experience it, I want to see how things goes. But मैं तो यार आई एम अ वेरी सिंपल गाय, कोई कुछ कह भी जाता है तो थोड़ी देर तो मैं इग्नोर करता हूँ। अभी यही एग्जांपल दे तो 10-11 महीने से टाइम पास चल रहा था यार। पर इतना मैं बता देता हूँ कि मैं आई एम नॉट अ कंप्लीट इडियट और इग्नोरेंट पर्सन। आप थोड़ी देर मुझे पोक करो, पर उसके बाद देन आई कम आउट विद डेटा। आई डोंट लाइक, मैं हवाई में तीर नहीं मारने वाला, मैं डेटा के साथ ही बात करूंगा और उसके बाद आई लीव इट अप टू पीपल। बट मेरे लिए आई एम क्लियर कि मुझे क्या करना है। सो शॉर्ट आंसर इज आई विल नॉट बी एबल टू आई, अभी तो मैं चेंज हो गया। पहले मैं बोलता था आई ऑलवेज फॉरगिव बट आई वोंट फॉरगेट, बट राइट नाउ फॉर फ्यू पीपल आई वोंट इवन फॉरगिव एंड फॉरगेट। सो ये नहीं होने वाला। एंड आई डोंट नो जिल, आपने क्या क्वेश्चन पूछा था, मैं आपका भी आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट, बट आई विल ट्राई टू फाइंड इट। बट आप बोलो। And that's 3.0. Yeah. So yeah. And sorry Ayush, I know you've been waiting for a very long time. You'll get your opportunity for sure. मेरे पास बहुत सारे questions है, but I think you'll have to do another session जहाँ पर मैं और थोड़े से hard hitting questions पूछूंगी, क्योंकि when you have given an opportunity to people to come and ask questions, I think it is fair that जो questions यहाँ नहीं पूछे जा रहे हैं, और इस सेशन के बाद भी लोग वो बातें करेंगे डेफिनेटली, तो वो क्वेश्चंस कोई ना कोई पूछे, because I know you're not afraid of responding, you're not afraid of taking on these questions. You're honest about them and you're answering it honestly. This is for everybody to see here. जो अभी सेशन देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, जो इसकी कॉपीज लोगों को लिंक्स भेजेंगे कि देखो इसने क्या बोला, और उसके ऊपर वो और सेशंस करेंगे। तो उन सब के लिए it's out there, here to see. They can see it and they can watch it and they can learn from it as well. Last मेरा question ये है कि and please, maybe request, okay, please do a session where I can interview you again and ask you some more questions. Where do you see this movement going from here on? There have been major reveals. There have been a lot of changed dynamics. There are a lot of things happening, not on the forefront, okay, but the internal stuff that is happening under the ground, under the table things happening. Where do you see this movement go? Yeah. हाँ, ये तो मैं बहुत सारे लोगों से ऑफलाइन भी बात करता रहता हूँ, क्योंकि पीपल आर रियली डिसअपॉइंटेड, पीपल आर रियली टायर्ड, पीपल आर, मतलब इस टाइम पे लोगों को ऐसे लगने लग गया है कि ये किसी डायरेक्शन में नहीं जा रही मूवमेंट। और एक स्टैंडर्ड जो जवाब है, बड़ा तकिया कलाम सबको लगता है, बट दिस इज व्हाट इट इज के I don't know, I don't believe or I don't trust any of the agencies right now 100%. I want to keep my faith, कि हो जाएगा, आएगा, and they will do what is required. Personally, I'll be very honest and candid about it. I somehow feel the family is just waiting for some kind of report, some kind of update from CBI,
so that they can take it to the next level. Without that, even the family is handicapped. Jahan tak rahi hai movement, hats off to Priyanka Di, the way she has been. She's not a simple housewife जो घर पे बैठी है तो चलो यार, running this campaign or doing this Twitter stuff is something that the only work she has. She is a very, very hardworking person, somebody who's very emotional, at the same time somebody who's very sensible. तो वो इस मूवमेंट को जिस तरह से आगे लेके जाना चाहती है और जो कर रही हैं, आई थिंक कुडोस टू हर एंड मोर पावर टू हर. हमारी तरफ से जो लोग आए थे, जितने भी आए, आई थिंक हमारी सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इफ एवरीबडी कंसिडर्स देमसेल्व्स एज एसएसआर वॉरियर, के डू द राइट थिंग, व्हाट यू फील. अगर आपको लगता है कि what the sister is doing, what the taglines and जो social media पे trending and spreading the word, अगर वो करके आपको लगता है कि you will be able to contribute, please do it. If you feel you want to do it on the ground, आप लोग वो ground warriors के साथ बैठ के ground पे you start those campaigns. If you feel you're just a social media, वो कहते हैं keyboard warrior है, you'll come at your time. We have all kinds of people, I know keyboard warriors, I know social media warriors, I know ground warriors. सब लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं जितना कर सकते हैं. तो ये मूवमेंट तब तक ही चलेगी जब तक ये ऑनेस्टी रहेगी इस मूवमेंट के लिए, सुशांत के लिए. ये जो इनफाइट्स, ये जो आर्ग्यूमेंट्स, ये जो गलत लोग आ जाते हैं और उनको इम्पोर्टेंस देके सिर पे चढ़ाना, आई थिंक दैट रियली नीड्स टू स्टॉप. कुछ लोग बहुत देर से हैं यहाँ पर, they've constantly been breaking this movement. उनका बाहर जाना बहुत ज़रूरी है, और जो लोग हैं उनके साथ अपने आप को अलाइन करना भी बहुत ज़रूरी है. बट मोर इम्पॉर्टेंटली अलाइनिंग विद कोई यहाँ लीडर तो है नहीं. द ओनली लीडर इज सुशांत, एंड आफ्टर दैट इट इज़ द फैमिली जो हमें गाइड कर रही है. सो इफ वी कैन जस्ट अलाइन आवरसेल्व्स विद द फैमिली, follow what we want to do, at the same time follow what the family is doing. I think family knows the best, and they are the ones who can actually do anything. तो उनको ये कुछ लोग जो सोशल मीडिया पे अदरवाइज ज्ञान पेलने आ जाते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स जिनको मैं मंद बुद्धि बोलता हूँ, मैं उनको जीव क्या बोलते हैं, जीव बुद्धि, व्हाटएवर, मैं उनको मंद बुद्धि बुलाता हूँ. कि आप दो आराम से उनको जाके डीएम में सजेशन दो कि हाँ आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो. डोंट पुश देम. But ये movement, it can only go strong if we all align ourselves with this common goal. हर कंपनी का एक विजन होता है, हर प्रोडक्ट का एक रोड मैप होता है. उसी तरह से इस मूवमेंट का भी एक रोड मैप और कुछ माइलस्टोन्स होने चाहिए. And if we achieve those, I think we will be continuously, जैसे boycott Bollywood is a subset, वो करना है. boycott other products, boycott some brands, इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अगर फोकस करें, I think we'll be able to achieve a lot more success, and eventually we will get justice for Sushant. But I just hope agencies कुछ कर पाएं, and the family gets a closure from them directly. Thank you, Varun. I will not take more of your time and everybody else's time. And I will not say anything that I want to say today, because today is not that day. Please answer Jill's question. She asked, where are you distributing all the money and freebies? Okay. And all the best to you. More power to you. All the best to all SSR warriors, and more power to them. I love you all. Bye-bye. Thank you. Bye. All right. तो जिल जी, where are you distributing all the monies and freebies? मुझे खुद नहीं पता कि भाई कौन से मैंने freebies दे दिए, कौन सा मैंने पैसा दे दिया, किसको दे दिया. ये मुझे आज भी क्वेश्चन पूछा गया था, और मैं फिर से दोबारा इसी क्वेश्चन का सिंपल सा जवाब है भाई. ना तो मैं इतना कोई पैसे वाला इंसान हूँ कि यहाँ पर मैं पैसे बांटने की बातें करूँ, और ना मैं इस मूवमेंट में यहाँ कोई पैसे से रिलेटेड कोई चीज़ करने आया हूँ या फ्री बीज देने आया हूँ. बल्कि मुझे कहा गया कि मुझे $6 मिलियन मिले हैं, मुझे प्लेन मिला है, मुझे व्हाटएवर जो भी मिला है, घर मिला है. तो एंड ऑफ द डे आई हैव नो प्लान्स, आई हैव नॉट डन इट इन द पास्ट, आई हैव नो प्लान्स फॉर फ्यूचर. तो I'll stick to my principles and ideology, and I'll keep talking about Sushant only. ओके, अभिषेक जी गिर गए, कहीं चले गए, तो विल वेट फॉर हिम. बट आयुष बोलो भाई, कैसे हो? थैंक यू इतनी देर वेट
करने के लिए। ये बिल्कुल प्लान नहीं था, मुझे नहीं पता था शालिनी इतना टाइम लेने वाली है। नमस्ते और हाँ, वेट करने के लिए थैंक यू। सबसे पहले अपनी बात रखूं तो मैं रखने से पहले मैं एक लाइन बोलूंगा, हाँ जी, कर्म का सब खेल है, ये एक दिन सबको आएगा। आज जो तुझे रुला रहा है, कल किसी और को रुलाएगा। वो तो परसों ये साला कर्मा ही है कि ऐसे लोगों को असली जगह बता रहा है। और कल जो मैंने देखा कि आपके ऊपर इतने समय से बेसलेस एलिगेशंस लग रहे थे, अरे भाई एक बात बताओ, कौन सा गलती कर दिया जो उन पे एलिगेशन लगा रहे हो लोग? अरे इतने में लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एक ट्रस्ट होता है। एक कंपनी से अगर आप कोई एक सामान भी खरीदते हैं तो उसका भी एक ट्रस्ट होता है कि हाँ हम इस पर रिलाई करेंगे, इसीलिए पब्लिक आएगी। और तो और ये चीज देखने वाली बात है कि आपके सपोर्ट में कितने लोग हैं, ये नहीं मैटर करता है। यहाँ लोग आए हैं एसएसआर की जस्टिस के लिए, तो प्लीज जस्टिस पे फोकस करें। ये कौन एसएसआर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इस पे ध्यान देने से क्या होगा, डिरेल होगा और माइंड, अपना दिमाग तो लोग खो बैठेंगे इस चक्कर में, खुन्नस में। तो एक और मैं सुनाऊंगा एक लाइन, न थके अभी पैर, न अभी हिम्मत हारी है, न थके अभी पैर, न अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया लाइनें लाते हो, पता नहीं कहाँ से लाते हो, बट सीरियसली या और थैंक्स टू इंटरनेट कि ऐसी लाइनें पड़ी होती है तो लोगों को तो पहुंचाता हूँ। भाई इंटरनेट पे तो बहुत कुछ अच्छा भी पड़ा है, पर लोगों को अच्छा मिलता नहीं है। लोगों को बकवास चीजें शेयर करना और एंटरटेनमेंट करना ही ज्यादा जरूरी लगता है। सो इसीलिए कहता हूँ इंटरनेट पे बहुत कुछ है, सो बट यू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट। सो ये भी एक तरीका है इंटरनेट को यूज करने का गाइस, वन ऑफ द बेस्ट वेज। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, really appreciate that. Yep, जैसे RSP कह रही है, आयुष गुड ऑन यू फॉर यूजिंग द इंटरनेट फॉर रीडिंग गुड स्टफ। यही पॉइंट है कि लोग इंटरनेट का बहुत मिसयूज करते हैं। कुछ स्पेसेस बनानी होती हैं, कुछ को यूट्यूब सेशन बनाने होते हैं, और कुछ आयुष जैसे होते हैं जो आके बेसिकली सबको अच्छा ज्ञान देते हैं। सो ऑलराइट, आज का ये वाला सेशन आई एम गोना एंड इट राइट हियर। आई डिड नॉट एंटिसिपेट कि ऐसा होगा, बट जैसे शालिनी ने कहा, शी विल डू अनदर सेशन, एंड एक्चुअली आई लव दिस। लेट्स डू दिस फॉर्मेट, ऐसा हमें शायद दोबारा करना चाहिए। आस्क मी एनीथिंग, एंड क्योंकि एकदम से स्पॉट पे तुम आ जाओगे तो इट्स अ वेरी ऑनेस्ट, कैंडिड, एंड टेल्स यू हु एग्जैक्टली यू आर। Alright, looks like Abhishek आने की कोशिश कर रहा है। अभिषेक आ जाओ जल्दी, and we'll end it after we ask Abhishek to sing a bhajan as well, और या कुछ 2 lines। हाँ जी अभिषेक, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। फोटो तो हटा दे भाई, थंबनेल तो चेंज कर लेता हूँ। रुको सर, कर लेता हूँ मैं। नहीं तो मैं कर लेता हूँ यार, मैं अपना चेंज कर लेता हूँ। ओके, हाँ तू बोल भाई। ओ हो गया, क्या बात है, वेरी नाइस। हाँ जी। और सर क्या हाल चाल है? बस जी, आप बताओ क्या कहना चाहते हैं, कैसी चल रही है मूवमेंट? बस मूवमेंट चल रही है, ट्रोलिंग के तहत मूवमेंट चल रही है, एक दूसरे को ट्रोल किया जा रहा है, और क्या। बिल्कुल। तो मैं एक चीज जरूर बोलूंगा फिर से अभिषेक, क्योंकि आप यहाँ पर हो, बी अ लिटिल बिट मोर, थोड़ा सा ना, आई नो थोड़ा टाइम भी लगता है चीज़ों को, सोशल मीडिया मैं भी इस बात से जा चुका हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा रिएक्ट करना छोड़ दो, रिस्पॉन्ड करना शुरू करो। रिएक्ट होता है जब तुम इमीडिएटली कुछ हुआ और तुम एकदम से आके धड़ धड़ कुछ ना कुछ कर दो,
रिस्पॉन्ड होता है कि पहले उस सिचुएशन को देखो, लोगों को देखो, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसके बाद कोई कुछ कहो या बोलो। मुंह से जितना कम निकले या हाथों से टाइप होते हुए कम निकले वो ज़्यादा अच्छा है। लोगों को सुनो, पहले ऑब्जर्व करो और सही गलत को जज करना सीखो। ये टाइम के साथ आएगा। मैं खुद गलतियां करता हूँ यार, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से सिर्फ इतना कहूँगा, जस्ट बी अ लिटिल बिट मोर काम। और हर चीज़ को इतना दिल पे मत लो कि हार्ट अटैक आ जाए। दिल पे इतना बोझ मत लो। थोड़ा लाइफ को इजी रखो, एंजॉय भी करो, खुशियां भी रखो, और अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहेंगे। सो चिल भी मारो। बिल्कुल सर। और ये देखो कितना अच्छा इन्होंने मैसेज दिया है। ये हैशटैग होना चाहिए एक्चुअली आज का, हैप्पी अनमोल्ड दिवस। बहुत सही कहा वीपी, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू एवरीवन। आई थिंक अब मैं थोड़ी देर आराम से I'll sit on a chair, maybe drink a cup of tea or coffee and then I'll sleep. अरे वाह, एक और हमारे बहुत ही प्यारे, हेलो प्रदीप जी। नमस्कार वरुण जी, हर हर महादेव। मैं इवनिंग टी ले रहा था, बहुत दिनों के बाद। थोड़ा सा वेदर अच्छा है तो घर के बाहर बैठ के, हाँ जी, लॉन पे थोड़ा बैठा हूँ। मैं सुन रहा था, आई वॉज लिसनिंग टू यू फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ओके, तो मैं 2 चीज बोलने का लिए आया हूँ। श्योर। नंबर 1, मैं जितने दिन से आपके देख रहा हूँ, आपके शो जितने भी चैनल्स हैं यूट्यूब का, सबके अंदर इफ आई कंपेयर बिटवीन the SSRN's movements and the channels they have participated or they have contributed, आपके चैनल सबसे न्यूट्रल है, अनबायस्ड है और जेन्युइन है। ये 3 वर्ड मैं यूज करूंगा। अनबायस्ड है, अनबायस्ड का एक प्रॉब्लम भी होता है, वो आपको झेलने पड़ रहा है। इट हैपेंस अगेन एंड अगेन। जो गलत आदमी लोग आ जाते हैं, जो बंदा झूठे हैं, मक्कार है, वो भी आ जाते हैं, और सबको फेस वैल्यू पे कभी कभी ले भी लेते हो। दिस इज योर काइंडनेस, दिस इज योर गुडनेस। आपके अपब्रिडिंग ऐसे हैं, आप अच्छे इंसान को देखते हो सामने, वैसे देख के बड़े हुए हैं, और गलत आदमी को समझ नहीं आता है। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, आई वुड से वेरी क्लियरली, वेरी ऑनेस्टली, you don't need to give any explanation, you don't need to give any justification or any sort of arguments stating that ये गलती हो गया था। बोलना नहीं है, जरूरत भी नहीं है। you don't need to, no ramification, बोलने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपकी जो ऑनेस्टी है ट्रांसपेरेंट है, दिखाई देता है पानी के माफी को। आपको मैं एक चीज मेरे को बस याद आया, ये सचिन रोबोट का एक ही चीज मेरे को याद आया, वो मैं बोल के मैं खत्म कर दूंगा। शायद आपको याद होगा, उस टाइम कुछ कवाल चल रहा था, वो दिल्ली वाला जो फर्जी आदमी था ना, अपने को लॉयर बना के आ गया था, जो झूठा आदमी दिल्ली वाला। उस टाइम एक बार एक चैनल पे वो चला गया, कहता है कि वरुण, आई बीन देयर ऑन योर फेवर टू आर्ग्यू विद देम। तो मैंने आपको बोला था, शायद आपको याद है, मैंने बोला इसको रोको, ये आदमी झूठा है, नहीं तो ये आदमी गलत है। व्हाट ही इज डूइंग देयर, ही डोंट नीड टू कम लाइक दैट, वी डोंट नीड टू प्ले आवर ओन ट्रम्पेट। हमें अपना ढोल बजाने का जरूरत नहीं है, दिखाई दे रहा है, और जो गलत आदमी होगा वो टाइम के हिसाब से निकल जाएंगे। दैट हैपनिंग। अभी आप देखिए, ये फरेक जो था, वो बॉलीवुड का चमचा था, निकल गया, और वो जो दिल्ली वाला नौटंकी वाला झूठा आदमी था, लॉयर बन के आया था, वो भी खत्म हो गया है। सो एट द मोमेंट दिस इज गुड, वी हैव नो मोर फैट, वी हैव द स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग मसल्स विद अस, बॉडी पावर हमारे जो है अच्छे हैं, तंदुरुस्ती है, और वो जो बीमारी वाला जो था इंसान निकल गया है। दैट इज गुड फॉर अस। ये अच्छा हो रहा है, और जैसे आप आवाज उठाते हो, आवाज उठाइए, करते रहिए। वी आर रोलिंग एवरी डे एंड वी आर द लिसनर्स, वी आर लिसनिंग, एंड टाइम टू टाइम व्हेन पॉसिबल, डेफिनेटली लाइक मी, स्मॉल पीपल विल कम एंड जॉइन विद यू। दैट्स ऑल। नहीं प्रदीप जी, थैंक यू सो मच। और मैं तो यही कहूंगा, एवरी वॉइस, चाहे वो मेरी है, आपकी है, अभिषेक की है, संयुक्ता की है, जिल की, शालिनी, कोई भी है यहाँ पर, सबकी मैटर करती है। एंड वी ऑल हैव बीन गिवन दिस प्लेटफॉर्म। मैं तो खुद भी इस प्लेटफॉर्म का आई एम रियली ग्रेटफुल
कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे खुद को एक वॉइस मिली एंड बहुत सारे लोगों को वॉइस मिली, जो आई थिंक इज रियली रिक्वायर्ड इन दिस इन एनी मूवमेंट, क्योंकि एंड ऑफ द डे मूवमेंट तभी चलती है व्हेन पीपल कैन कनेक्ट एंड दे कैन एम्पलीफाई द वॉइस एंड एम्पलीफाई द वो जो एक मूवमेंट की जो एनर्जी है. So I'm really blessed and thank you so much for always being one of the guiding lights. Ups and downs तो आते ही रहेंगे, आपने बिल्कुल सही कहा. I'm not accountable to everyone, but yes, I'm still accountable to you. और उनके लिए मैं आता रहूँगा, उनके लिए मैं ये करता रहूँगा, and together we will keep on fighting, no doubt about it. कमाल बहुत strong है and you 100% right आपने कहा. अब हमारी वो जो मसल पावर है, it's time to show our muscle power to this Kapal and finish it off. So thank you so much for always being there. Really appreciate God that. bless you. भगवान आपकी अच्छा करें और हमारे Thank you. जो काम आप चल रहा है आपका वो आप करते रहिए. और आप मेरे को देखा होगा, अभी मैंने थोड़ा सा लिमिट कर लिया है. मैं सिर्फ इस हजार का बहन जी जो टैगलाइन देते हैं, मैं बस उतना ट्वीट करता हूँ. बहुत बढ़िया. I strictly follow into that. Yes, I think that's the मैं सबको best. रिक्वेस्ट करूंगा, have you think? उसके फैमिली जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे, हमको आइडिया देंगे, we will be with them until the justice is delivered. Until justice is done. Absolutely. All right. On this beautiful note, I'm going to end this. Thank you so much, Aapka bhi, Pradeep ji, and thank you everyone. We'll continue to talk. I'll do some more meaningful sessions, and we'll talk more about this cabal, boycott Bollywood, and how to take this justice for Sushant Singh Rajput movement forward. Thank you once again. Take care. God bless, and Jai Hind, Jai Bharat. Namaskar. Bye bye. Jai Hind, Jai Bharat.